Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 3 of CSC 291 Software Engineering 1. In today's lecture, we will start off with a brief overview of the traditional process models that we covered in the last lecture. Of those process models, the first one that we covered was waterfall model. Now, as we discussed in the previous lecture, that the biggest problem with the waterfall model is that we cannot go back from one phase to the previous one. So for example, in the first phase of communication, when we collect the requirements, if the customer wants a change in any of the requirements at the design stage or at the planning stage, we cannot come back and accept that change from the customer. So basically in the waterfall model, the biggest problem is that it is very rigid. It doesn't allow change very easily, or in fact it doesn't allow change at all. So that's why we discussed in the previous lecture that waterfall model is not a very practical model. It is only practical maybe for very small projects where you don't have time to accommodate changes and you know the requirements from the beginning. Another problem is that similar is the case with the design stage. Okay, once you have designed the problem, you cannot come back and change the design. For example, at the implementation stage, you figured out that there is something wrong with the design and your design is not as flexible as you would have liked. So you wanted to come back and change the design, but again waterfall model आपको allow ही नहीं करता कि आप वापस आएं और अपने design को change करें. So this is the biggest problem with the waterfall model, and that's why it's not a very practical model, or it's not used a lot. Next we saw a variant of waterfall model जिसको हमने कहा था waterfall model with feedback. The difference in this waterfall model in this model was there is a feedback allowed from the next stage to the previous one. For example, you can see in the planning stage, you can see there is this feedback coming from planning and going into communication. So this feedback, it allows a change. For example, at the planning stage, you realized that there is something in the previous stage that you want to update. You can use this feedback and go back to that previous stage and come back again. So it gives some flexibility, but this is within the process. So no external links are allowed in the process when the process is started. So this is a variant of waterfall model which is better than waterfall model, but again it has its problems. The next one that we covered, and I think which is the most interesting one, is the incremental model. I'm biased towards the incremental model because I've used it a lot. Incremental model क्या कहता है कि जी we develop the software in small increments. As you can see in this slide, we have shown 3 increments, but there can be many more increments in a project depending on the size of the project or the duration of the project. The incremental model क्या कहता है कि हर increment जो है आपके सॉफ्टवेयर की, उसके अंदर customer would tell you कि that's what he or she wants, और उसके accordingly आप development करते हैं. ठीक है. Usually what we do in the incremental model is that once we get the list of requirements, for example, let's say we got 10 requirements. Okay, let's say we have a requirement R1, we have requirement R2, we have requirement R3, we have requirement R4. So let's say we have 4 requirements, and it's basically upon us that which requirements we have to do in the first increment. Let's say the first increment was a month long. So we after discussion with the customer, we identify the most critical requirements. So we would say KG R1, and let's say R3, they are the critical requirements. So we will say that we will implement them first, and then we'll move on to requirement number 2 and requirement number 4. So that's how we basically prioritize requirements, and then we in each increment we do some requirements, and then we move on, we deliver it to the customer. One of the interesting things about the incremental model is that at the end of each increment, the software that you give to the customer, it's a working software. So there is some value added in each increment in the incremental model. So that's why we say that incremental model is very conducive to changes. So it is very close to customer wishes, because customer will always come up with new requirements. So basically you can accommodate customer changes very easily, because one of the things that is important to mention in the incremental model is that within one increment you cannot change the requirements. So for example, customer told you that he wanted something done in the increment 1. Now this increment, each individual increment in the incremental model, it is basically like a waterfall model. So basically in incremental model we have various small waterfall models. So you cannot go back in one increment
but if there is something that the customer didn't like at the end of an increment, he can always tell you कि जी fix that, whatever you develop here, fix that in increment 2. So basically you cannot go back in one increment, but you can always make the changes in the next increment. And another important thing is that what if the customer comes to you and asks for a change during an increment? That's an interesting question. For example, as we said, we are doing R1 and R3 in increment 1, and let's say customer came back to you and he said he wanted some change in requirement 1. Okay, now that's an interesting scenario. For example, imagine you are implementing a university management solution and a university has a registration deadline for its students कि जी वो semester शुरू होने के 2 हफ्ते बाद register कर सकते हैं. Let's say customer came back to you and said कि जी ये deadline हमने change करके 1 हफ्ता कर दी. ठीक है. Now that's a very small change, maybe you can do it. लेकिन incremental model के अंदर हमारी assumption ये होती है कि we will meet the customer once the increment is done. ठीक है. तो एक one thing that is very important to keep in mind that the customer is not always available, especially when you want him. So basically when we are doing incremental model, we have already decided that we will meet with the customer once the increment is done, and once he sees the increment, then at times he would say no, this is not the way I wanted it, and he would like you to change something. Then you can accommodate that in the next increment. So this is the incremental model that we covered. The next one is the prototyping model. Now this is a very interesting model in the sense that at times you would find a lot of people who just wanted software for the sake of it. For example, in my experience, I've come across a number of people जिनको के software सिर्फ इसलिए चाहिए था. I mean, they were not even technologically aware of the software or anything. They just went somewhere and they saw another company where people were using a software, so they said, okay, we want a software in our company. Okay, उस केस के अंदर उन लोगों को requirements बतानी भी नहीं आती. They might not be aware of, because at times the CEO and CTOs they are so rich and they are not worried about the small business processes, so they won't know what's happening in their company at times. Okay, but all they want is a software. So what happens at times, once you go to them and try to ask them questions कि जी हमें बताएं कि आपका ये वाला process कैसे होता है. For example, you go to a surgical industry, आप उससे कहते हैं कि जी आपके एक कैंची बनाने के अंदर कितने प्रोसेसेस लगते हैं. ठीक है. Now that's a question that CEO might not have an answer to. So what you would do, वो आपसे कहेगा कि जी आप उससे क्वेश्चन करते हैं कि जी अटेंडेंस कैसे लगाएंगे आप अपने एम्प्लॉयज़ की. Now again he might say कि जी मुझे इस तरह नहीं पता, आप जाएं और मुझे एक वर्किंग प्रोडक्ट ला कर दिखाएं, मैं आपको उसमें से बताऊंगा मुझे कि कौन सी चीज़ें चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं चाहिए. In that case, prototyping model is an ideal process model to choose. जब आपको कस्टमर को कोई चलती हुई चीज़ दिखानी हो, and then you filter out the requirements. And this happens a lot in Pakistani industry because people at times they are not aware of the technology and they are not aware of their requirements. So what they want is they want an initial software on the basis of which they can decide which features they want and which features they don't. A very interesting example is a few of my students, they went to guest house and they wanted to make a guest house management solution, and the owner, again, he was not very literate, but he wanted a software for his guest house. He had basically multiple guest houses and he was living abroad, so he wanted to control them sitting there and see the status कि जी कितने guest ठहरे हुए हैं और what's the account status और क्या चल रहा है. But when they went to him, so one of my students, he started asking him questions about requirement gathering from the Pressman book. जो Pressman की book मैंने आपको बताई है इस कोर्स के लिए. He started asking him questions. And he said, what are you talking about? Because he did not answer to those questions. What he said कि जी मुझे आप ला कर दिखाएं फिर मैं आपको बताऊंगा. So prototyping model is very interesting in the sense कि it provides the customer with a feel कि this is what your product might look like, and then it becomes easy for him to express himself कि जी ये मुझे चाहिए और ये नहीं चाहिए. तो होता क्या है इसके अंदर, प्रोटोटाइपिंग के अंदर we quickly make a हम करते क्या है कि हम जल्दी से एक सॉफ्टवेयर का वर्जन ले जाएंगे जिसके अंदर वी हैव सम स्क्रीन्स, बटन्स, इस तरह की चीज़ें होंगी. कस्टमर को हम जाके दिखाएंगे, कस्टमर कहेगा जी मुझे ये वाला नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे ये चाहिए. तो इस तरह की चीज़ें कस्टमर वुड सेलेक्ट एंड वुड टेल यू कि दिस इज समथिंग विच ही वांट्स एंड दिस इज समथिंग विच ही डजंट वांट. तो एक और चीज़ जो प्रोटोटाइपिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्रोटोटाइप जो आप बनाते हैं, जो इनिशियल वर्जन आप सॉफ्टवेयर का बनाते हैं, द सोल पर्पज इज टू गेट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. तो उसके अंदर हम ज़्यादा
ना तो डिज़ाइन के ऊपर ज़्यादा अटेंशन देते हैं, क्योंकि हमारा काम होता है कि हमने कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेनी, ना हम शायद कोडिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, हम जल्दी जल्दी वो प्रोटोटाइप बनाएंगे, विल टेक इट टू द कस्टमर। तो बहुत से केसेस के अंदर, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था, हम इसे थ्रो अवे प्रोटोटाइप कहते हैं। थ्रो अवे प्रोटोटाइप का मतलब ये है कि हम इसको अपने सॉफ्टवेयर के अगले वर्जन्स में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका डिज़ाइन शायद इतना बुरा हो कि वो हमारे असली सॉफ्टवेयर को ख़राब करे। सो प्रोटोटाइप का सिर्फ मकसद क्या है कि हम कस्टमर को दिखाएं, उससे क्लैरिटी लें और उससे रिक्वायरमेंट्स गैदर करें। अच्छा जी, जो फाइनल हमने प्रोसेस मॉडल पढ़ा था वो था स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल, पहली बात तो ये हम इसे स्पाइरल क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट लुक्स लाइक अ स्पाइरल। जिस तरह आप इसकी शक्ल देखें तो किस तरह की होती है कि यूं स्टार्ट होता है एंड देन इट ग्रोस, ठीक है। सो इट लुक्स लाइक अ स्पाइरल। इस स्पाइरल को हमने डिस्कस किया था कि यू कैन डिवाइड इट बेसिकली इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। इस तरह इसके बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं। एक क्वाड्रेंट में आपके इसकी कम्युनिकेशन होती है, फिर प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद यू डू मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है विच डिस्टिंग्विशेस स्पाइरल मॉडल फ्रॉम मे बी आइटरेशन इंक्रीमेंटल मॉडल इज कि स्पाइरल मॉडल के हर प्लानिंग फेज के अंदर यू डू रिस्क असेसमेंट, ठीक है। तो जो आपके प्रोजेक्ट्स हों जो कि बहुत क्रिटिकल हों, ठीक है, क्रिटिकल इन द सेंस ऑफ कंप्लीशन टाइम, क्रिटिकल इन द सेंस ऑफ कॉस्ट या कोई भी इस तरह की चीज़ हो, उसके अंदर एंड द ड्यूरेशन इज लॉन्ग, क्योंकि डूइंग रिस्क असेसमेंट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सो यू कैन से स्पाइरल मॉडल इज आइडियल व्हेन द प्रोजेक्ट्स आर वेरी लेंथी एंड you need to do risk assessment at every stage, क्योंकि हर स्पाइरल के हर बेसिकली एक लूप के अंदर you will do a risk assessment. So these were the 4 process models that we covered. The first one, waterfall model, then we covered a variant of waterfall model, then incremental model, prototyping model and spiral model. These 4 models, they are categorized as traditional process models. Because these were the base process models that have been proposed in the field of software engineering. But today, in today's lecture, what I would like, I would introduce 2 other models which are used in today's market, in today's software industry a lot, and we'll call them agile process models. Now, before moving to those models, I will try to introduce the concept of agility to you. Okay, what do we mean by agility? ठीक है, क्योंकि इन मॉडल्स के अंदर हमने एक चीज़ देखी है कि ऑल्दो वाटरफॉल मॉडल तो आपको चेंज करना बिल्कुल ही अलाउ नहीं करता, ठीक है। इंक्रीमेंटल आपको चेंज करना अलाउ करता है, लेकिन हो सकता है आपकी इंक्रीमेंट 6 महीने की हो, ठीक है, और 6 महीने बाद आपसे कस्टमर आके कहे कि जी मुझे तो ये चाहिए नहीं था, तो आपकी वो सारी इंक्रीमेंट वेस्ट हो गई। तो आजकल की इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे ई लांसिंग के ऊपर बहुत से लोग काम कर रहे हैं और आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कस्टमर्स अपने डेवलपमेंट टीम को बहुत छोटी छोटी इंक्रीमेंट्स देते हैं, ठीक है, यानी कि दे वुड गिव देम मे बी अ मंथ्स वर्क, मे बी अ वीक्स वर्क, और उनसे कहेंगे जी ये करके मुझे दें, ठीक है। सो इन दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट दीज मॉडल्स दे डू नॉट वर्क, ठीक है। तो these models new models have been developed and have been proposed and which are used very frequently in the industry. So हम आज उनको डिस्कस करेंगे and we will have a overview of 2 of those models. One is extreme programming and the other is Scrum. Lekin before we do that, I will introduce you to the concept of agile development. I will tell you what agility, what do we mean by agility. Okay ji. Normally or the developers or the development team, they have some fears about the software development, ठीक है जी। सबसे बड़ा fear क्या है कि जो आप चीज़ बनाने जा रहे हैं आपसे वो चीज़ नहीं बनेगी, ठीक है। This is something very common. This is not only true for software development, it is true for everything, ठीक है जी। जिस तरह आप घर में मे बी योर मदर इज कुकिंग एंड शी माइट बी वरीड के व्हाटएवर शी इज मेकिंग, सम गेस्ट्स आर कमिंग, यू नो, शी माइट बी नॉट बी एबल टू मेक इट राइट, यू नो। सो दिस इज समथिंग दैट इज कॉमन विद एवरी प्रोजेक्ट, यू नो, इवन दो इट्स स्मॉल और बिग. सो इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री दिस इज मोर कॉमन कि आपको यू हैव दिस थिंग इन योर माइंड दैट यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट इट, मे बी कस्टमर वोंट बी सेटिस्फाइड, क्योंकि इन द एंड कस्टमर विल ओनली पे यू वंस ही इज सेटिस्फाइड, ठीक है जी. So this is one of the biggest problems. The second fear that developer or the development team has is that the project will produce a product of inferior quality. Again, as we discussed कि quality एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके project के हर level पे होनी चाहिए. यानी कि for example you are collecting requirements, then you have to maintain quality. When you are making design, then you have to maintain quality. इसी तरह implementation, testing and finally in your deployment, you need to maintain quality. और अगर आपकी product के अंदर quality नहीं होगी, ठीक है, तो इट विल क्रिएट बैड नेम. हो सकता है कस्टमर आपको पे भी कर दे एंड एट दैट टाइम ही इज सेटिस्फाइड, बट वंस ही यूजेस द सॉफ्टवेयर एंड इफ इट इज नॉट ऑफ अ सर्टेन क्वालिटी, देन
this will create bad name not only for you but for your company, and you will lose business, you might lose business. जिस तरह e-lancing की हमने अभी बात की, तो e-lancing के ऊपर once you do a project you get a rating, customer rate you, maybe out of 5 stars they will give you 4 stars, 4.5 stars, they say he is done excellent, or you know, but if he is not satisfied he will give very bad rating to you, and the next time you go on that website to get the project you might not get the project. ठीक है, तो quality is very important, and this is a very big fear for the developers, that the product they produce, it should be of good quality. And the third one is that the project might be late. ठीक है, और this is not a fear, in fact this is a very common problem कि most of the projects in the industry they are late. ठीक है जी, इसके कई रीजंस हो सकते हैं. कई रीजन ये हो सकते हैं कि कस्टमर बहुत एंथुसियास्टिक है, कस्टमर कहता है कि जी नहीं आपने ये 1 महीने में करके देना, even though you know you won't be able to do it in a month and you have told it to the customer, लेकिन कस्टमर is persistent कि नहीं जी I want this done in this and this time. ठीक है, now that's a big problem कि आप कस्टमर को बता भी रहे हैं लेकिन कस्टमर कहते हैं नहीं. तो अगेन अनरियलिस्टिक जब आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं then this happens that the project will be late, or at times maybe there are other problems. हो सकता है आपकी टीम टेक्निकली इतनी स्किल्ड नहीं है, you know that's a serious problem then. अगर तो एक्सपेक्टेशंस का मसला है तो maybe the next time you will get it right, लेकिन if there are other problems, लेकिन this is one of the fears कि project will get late and will have to work 80 hours a week. Now this is very common in software industry. This does happen कि जब भी डेडलाइंस आती हैं तो जो डेवलपर्स होते हैं वो बेचारे पूरी पूरी रात काम कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ये जो फेयर है ये एक्चुअली दिस डज हैपन कि लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है जब डेडलाइंस आती हैं. तो दिस इज़ अगेन अ वेरी कॉमन फेयर, एंड वी विल हैव टू ब्रेक कमिटमेंट्स. ऑब्वियसली व्हेन यू वर्क 80 आवर्स अ वीक, जब आप हफ्ते के 12-12 घंटे 15-15 घंटे लगाएंगे तो ऑब्वियसली यू विल बेसिकली ब्रेक कमिटमेंट्स. ठीक है जी, एंड वी वोंट बी हैविंग फन. ठीक है, अगेन अगर आपकी एस्टिमेशंस और आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो रियलिस्टिक नहीं है तो यू विल बी अंडर प्रेशर थ्रू आउट द प्रोजेक्ट. ठीक है, आपको हर वक्त टेंशन होगी कि यार कि मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा कि नहीं होगा. ठीक है, और इवेंचुअली यू वोंट बी हैविंग फन. ठीक है, क्योंकि if the environment in which you are working, in which you are doing your project, it's basically fun environment where people love to work with each other, then इट्स एन आइडियल एनवायरनमेंट टू वर्क इन. आपका प्रोजेक्ट शायद टाइम पे हो जाए, लेकिन जब लोग प्रेशर में होंगे तो काम आपका ख़राब होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं. ओके जी, दीज आर सम कॉमन फियर्स फॉर डेवलपर्स. ठीक है, व्हाट इज़ एन आंसर टू देम? ये जो एजिलिटी के जितने भी प्रोपोनेंट्स हैं, जो भी लोग एजिलिटी को प्रमोट करते हैं, ठीक है, व्हाट दे बिलीव इन इज दे बिलीव इन चेंज. ठीक है, दे बेसिकली से कि डोंट प्लान अ लॉट and expect changes, क्योंकि change तो आनी आनी. ठीक है, let's just have a quick overview कि what is agility. Number one is effective response to change. Now these you need to look at these words. So first one is effective response to change. तो ये change is very important. Agility base ही change के ऊपर करती है. Agile models कहते हैं कि change आनी ही आनी है. ठीक है जी, और effective communication among all stakeholders, ये हमने देखा था, क्योंकि ये आप एजाइल मॉडल जो हम अभी देखेंगे, यू विल सी दे आर वेरिएंट्स ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल. ठीक है, द डिफरेंस इज कि इसके अंदर जो इंक्रीमेंट्स का साइज होता है दैट इज वेरी स्मॉल. इंक्रीमेंट के साइज से मेरी मुराद है कि कितने अरसे की इंक्रीमेंट है. ठीक है, द साइज ऑफ द इंक्रीमेंट इज वेरी स्मॉल इन एजाइल मॉडल्स, और इसकी वजह से यू नीड कम्युनिकेशन विद द स्टेक होल्डर्स. जब इंक्रीमेंट का साइज स्मॉल होगा तो आपको हर इंक्रीमेंट के बाद कस्टमर से मिलना है, तो ऑब्वियसली यू नीड कस्टमर देयर. अगर कस्टमर ही अवेलेबल नहीं है तो एजाइल मॉडल्स नहीं चल सकते. अच्छा जी, ड्रॉइंग द कस्टमर ऑन टू द टीम. अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट कि कस्टमर शुड थिंक ही इज पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट टीम. If the customer doesn't believe that, so he won't give you time. So this is very important. You need to ensure the customer that you are part of this whole process. The thing is that you need to organize the team so that it is in control of the work performed. ठीक है जी, आपकी जो टीम है उसको पता होना चाहिए कि ये इंक्रीमेंट कितनी लंबी है. ठीक है, और विद इन एन इंक्रीमेंट यू नीड टू डिवाइड टास्क कि कौन सा बंदा किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि आपका काम प्रॉपरली उस टाइम पे हो जाए. यील्डिंग का लफ्ज़ यहाँ पे लिखा गया. दिस इज इंटरेस्टिंग. यील्डिंग से मुराद ये है कि एजाइल मॉडल जो है इट बेसिकली इज नॉट वेरी रिजिड. ठीक है, जिस तरह हमने वाटरफॉल मॉडल देखा था, उसके अंदर अगर कोई चेंज आ जाए तो यू कैन नॉट डू दैट चेंज. ठीक है, लेकिन एजाइल मॉडल का बेसिस ही क्या है कि इट्स अ यील्डिंग मॉडल. ये इट इज़ वेरी अकोमोडेटिंग. जब भी कोई चेंज आती है तो इट लेट्स यू डू दैट. ठीक है, एंड वन फ्यू फाइनल वर्ड, इट्स रैपिड इंक्रीमेंटल डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर इज नोन एज एजिलिटी. ठीक है, यानी कि आप पहली चीज़ क्या है कि इट्स रैपिड एंड इंक्रीमेंटल.
तो एज आई टोल्ड यू कि इंक्रीमेंट्स ही होती हैं, लेकिन इंक्रीमेंट साइज इज वेरी स्मॉल इन एजाइल प्रोसेस मॉडल्स। अच्छा जी, अब एजाइल प्रोसेस क्या होता है? एजाइल प्रोसेस इज ड्रिवन बाय कस्टमर डिस्क्रिप्शंस ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, जिस तरह हमने इंक्रीमेंटल के अंदर डिस्कस किया था, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई शुड टेल यू, कि जिस तरह इंक्रीमेंटल के अंदर हमने कहा था कि हम कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स लेते हैं और हर रिक्वायरमेंट्स को यूजुअली हमने नंबर किया होता है। ठीक है, अगेन ये मैंने आपको बताया कि इट इज एन वेरिएंट ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल, और दिस मॉडल वर्क्स ऑन कस्टमर डिस्क्रिप्शंस ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड। हो सकता है कि कस्टमर, क्योंकि इट्स अ वेरी रैपिड डेवलपमेंट हैपनिंग इन दिस एजाइल, इन दीज एजाइल प्रोसेस मॉडल, हो सकता है कस्टमर आपको पूरी रिक्वायरमेंट्स ही ना बताए। ही वुड कम टू यू एंड ही वुड से कि जी आई वांट R1 एंड R2 डन फर्स्ट। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कस्टमर आया, उसने आपसे कहा जी R1 और R2 मुझे कर दो। ठीक है, नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, आपने वो दोनों की एंड यू वेटेड, आपने कस्टमर को दिखाई, उसने दोबारा आया और उसने आपको दोबारा बता दी। लेकिन अगेन अगर आपको कस्टमर ज़्यादा चीज़ें पहले बता दे तो यू हैव टू सिट विद द कस्टमर, यू हैव टू प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट्स, और कस्टमर की मर्जी के मुताबिक आपने कोई काम पहले करना है और कोई काम बाद में करना है। सो दिस इज थिंग टू कीप इन माइंड। इसके बाद क्या है कि एजाइल के अंदर यू नीड टू रिकॉग्नाइज दैट द प्लान्स आर शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, इसलिए वन शुड नॉट वरी अबाउट टू मच प्लानिंग। ठीक है, एजाइल प्रोसेस मॉडल के अंदर हम प्लानिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि वी ऑलवेज बिलीव कि जो भी हमने प्लान किया है वो शायद पूरा ही ना हो या वो शायद चेंज हो जाए। ठीक है, तो दिस इज अनदर थिंग विच वी नीड टू कीप इन माइंड। और डेवलप सॉफ्टवेयर आइटरेटिवली विद हैवी एम्फेसिस ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, दैट्स व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, कि वी डू वर्क इन इंक्रीमेंट्स। ठीक है जी, और अगेन जिस तरह के इंक्रीमेंटल मॉडल में होता था कि हर इंक्रीमेंट इज अ वर्किंग सॉफ्टवेयर, सो दिस इज समथिंग विच इज ट्रू इन केस ऑफ एजाइल मॉडल्स, कि हर जो भी आप इंक्रीमेंट, इवन दो द इंक्रीमेंट इज स्मॉल, लेकिन whenever you give a new increment to the customer, there is a new functionality or there is some value added to the product. ठीक है, और it is very adaptive, it adapts as the change occurs. So this is what an agile process is. There are few principles of agile methods. ठीक है जी, this is taken from the Ian Somerville book that I referred to you, the reference books, one of the reference books that I mentioned to you in the introductory lecture on software engineering. Okay जी, a few principles, ये चीज़ें we call them principles क्योंकि अगर ये चीज़ें ना हो तो आपके agile models चल ही नहीं सकते, they would fail. ठीक है, the first one is customer involvement. तो अगर customer की involvement नहीं है तो agile model आपका नहीं चल सकता। ठीक है, क्योंकि ये जिस तरह हमने पहली स्लाइड्स में भी डिस्कस किया कि यू नीड टू ड्रॉ कस्टमर एज अ पार्ट ऑफ दिस टीम। ठीक है, यानी कि यू नीड टू टेल द कस्टमर दैट यू आर पार्ट ऑफ द टीम, और कस्टमर शुड रियलाइज कि ही इज पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट टीम। ठीक है, क्योंकि अगर कस्टमर टीम का पार्ट नहीं बनेगा तो ही विल नॉट टेक ओनरशिप ऑफ द वर्क यू डू और ओनरशिप ऑफ द वर्क दैट इज बीइंग डन। ठीक है, हो सकता है वो आपको टाइम ही ना दे और कस्टमर आपको नहीं मिल रहा तो एजाइल फेल हो गया। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि अगेन मैंने जिस तरह आपको बताया था कि इसके अंदर है इंक्रीमेंट्स ही। ठीक है, जिस तरह आपकी ये एक इंक्रीमेंट चल रही है, लेट्स से। ठीक है, अब इस इंक्रीमेंट के बाद यू नीड कस्टमर हेयर, लेकिन अगर कस्टमर अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, वो आपको 10 दिन वेट करा देता है, यू हैव 10 days डिले। ठीक है, इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि आप 10 दिन आपकी टीम फारिग बैठी हुई है एंड यू आर वेस्टिंग टाइम, तो इन द एंड आपका प्रोजेक्ट तो लेट होगा। दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, लेकिन हो सकता यू नीड कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर शुड बी वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, अदरवाइज द प्रोजेक्ट वुड फेल। सेकेंड थिंग इज दैट देयर इज इंक्रीमेंटल डिलीवरी। ठीक है, क्योंकि एजाइल के अंदर हम बिलीव करते हैं कि चेंजेस आनी है, और तो हम हमेशा डेवलपमेंट जो है इंक्रीमेंट्स के अंदर करते हैं, ताकि अगर इंक्रीमेंट के अंदर कोई चेंज भी करनी हो तो वी कैन ऑलवेज फिक्स इट इन द नेक्स्ट इंक्रीमेंट। एम्फेसिस जो होता है एजाइल मॉडल्स के अंदर, द एम्फेसिस इज ऑन पीपल नॉट प्रोसेस। ठीक है, यानी कि हम प्रोसेस को बहुत रिजिडली फॉलो नहीं करते कि हम प्लानिंग बहुत डिटेल में कर रहे हो, हम डिजाइन बहुत डिटेल में कर रहे हो, बट द एम्फेसिस इज ऑन पीपल। पीपल के अंदर एम्फेसिस क्यों होता है? जिस तरह मैंने आपको कहा कस्टमर इन्वॉल्वमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी टीम के अंदर बिलीव बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज अगेन अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन एजाइल मॉडल्स एंड दोज ट्रेडिशनल मॉडल्स दैट वी हैव कवर्ड। एंड एम्ब्रेस चेंज। ठीक है, आपका मॉडल ऐसा होना चाहिए
कि हमने जिस तरह अभी भी बात की कि डिज़ाइन और प्लानिंग के ऊपर हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, क्योंकि दिस मॉडल इज़ बेसिकली यील्डिंग मॉडल, ठीक है, इट एक्सेप्ट चेंजेस वेरी इजीली, ठीक है. तो वी नीड टू वर्क इन दिस मॉडल ऑलवेज बिलीविंग कि देयर वुड बी चेंज, ठीक है जी. और मेंटेन सिंप्लिसिटी, ठीक है. ये जिस तरह हम डिज़ाइन की, मैंने आपको एग्जांपल दी, डिज़ाइन के जिस तरह डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, आप बहुत हायर लेवल से स्टार्ट करके क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट, एल्गोरिथम्स तक, डाटा स्ट्रक्चर्स तक, इस डिटेल तक जा सकते हैं डिज़ाइन करते हुए. लेकिन व्हेन वी से मेंटेन सिंप्लिसिटी, तो हम उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस ही नहीं है हमारा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर. वी जस्ट गेट अ न्यू रिक्वायरमेंट, हमने थोड़ा सा एक मिनिमल डिज़ाइन किया, देन वी स्टार्टेड डेवलपिंग इट, क्योंकि इंक्रीमेंट बहुत छोटी है, हमारे पास डिज़ाइन करने का टाइम ही नहीं है, ठीक है. तो मॉडल इज वेरी सिंपल, दैट यू गेट सम न्यू वर्क, यू गेट इट डन, यू शो इट टू द कस्टमर, यू गेट न्यू वर्क, ठीक है. तो दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स: कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, इंक्रीमेंटल डिलीवरी, people not process, embrace change, or maintain simplicity. So there are 5 main principles of agile methods. जी, as we discussed, there are quite a few agile process models that are in the market. और इसमें से हो सकता है कि आपकी कंपनी के लिए एक suitable हो, दूसरा ना हो, ठीक है. And that's why you can see that there are various models proposed. They are agile. All of them, they accept, they embrace change, ठीक है. लेकिन some companies might prefer extreme programming, whereas other might prefer Scrum, or other might prefer Crystal. In the coming lectures, or in today's lecture, we'll start off with covering extreme programming, and we will cover Scrum as well. Some part in today's lecture, some part in the next lecture, and we will not be covering the other ones. But there is a lot of help available for them over the internet, and you can always have a look at them. We will start with extreme programming, and then we will look at what Scrum entails. Okay, ji. Extreme programming. This is one of the most widely used agile methods. ठीक है. As the name suggests, it takes basically an extreme approach to iterative development. I mean, all of these agile models, they take an extreme approach to iterative development. क्यों extreme हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि increments बहुत छोटी होती हैं. You can have multiple increments in one day. Now, this is something very interesting. कि increments can be so small that you have multiple increments in one day. ठीक है. So you have so much interaction with the customer happening in one day. Islam इसके अंदर कुछ let's go through this slide that new versions may be built several times per day. Increments are delivered to the customer every 2 weeks, which means कि 2 हफ्ते से ज़्यादा बड़ी इंक्रीमेंट नहीं हो सकती extreme programming के अंदर. All the tests must be run for every build, and the build is only accepted if the tests run successfully. Now this is very interesting कि हमने भी डिस्कस किया कि एक दिन के अंदर मल्टीपल इंक्रीमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है. Now each time you make a new build, you need to run all the tests again, ठीक है. तो there is lot of emphasis on the testing, क्योंकि हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि हम डिज़ाइन पे बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते, बट इन दी एंड वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी हम प्रोडक्ट बना कर दे रहे हैं कस्टमर को, दैट इज ऑफ अ सर्टेन क्वालिटी. सो हाउ डू वी इंश्योर क्वालिटी? कि वी आर वेरी थरो इन द टेस्टिंग, ठीक है. वी बेसिकली मेक श्योर दैट देयर इज नो एरर वंस वी डिलीवर इट टू द कस्टमर. ओके जी. नाउ देयर आर फ्यू एक्सपी वैल्यूज, जिस तरह हमने पीछे देखी थी कि जर्नली एजाइल के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, दे माइट बी सिमिलर टू दैट. एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कुछ वैल्यूज हैं. बाय वैल्यूज वी मीन के दीज आर द प्रैक्टिसेस और दीज आर द थिंग्स दैट शुड बी इन अ टीम दैट इज फॉलोइंग दिस एजाइल प्रोसेस मॉडल, ठीक है. नंबर 1 इज कम्युनिकेशन, ठीक है. नाउ देयर शुड बी एक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द टीम मेंबर्स. In fact, there should be active communication between all the stakeholders. So stakeholders here are number 1 the development team, ठीक है. Number 2 the customer, and maybe your higher management, ठीक है. So all the stakeholders should be in active communication, क्योंकि आपके पास अगर communication नहीं होगी तो you will waste time, or your increments would be late then, ठीक है. So you need a lot of communication, and again we have simplicity. We don't waste a lot of time on documentation. We don't do a lot of design. We keep it simple. We get something, we get it done, and we get something new. ठीक है. Feedback is very important, क्योंकि आपने हर इंक्रीमेंट के बाद कस्टमर को फीडबैक देनी है, कस्टमर ने आपको फीडबैक देनी. आपने कस्टमर को फीडबैक किस फॉर्म में देनी है? आपने उसको प्रोडक्ट बनाकर दी, कस्टमर ने आपको बताया जी ये सही है या नहीं है, ठीक है. सो इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ फीडबैक. और करेज, आपको जिस तरह हमने कहा मल्टीपल बिल्ड्स एक आ गई, ठीक है. नाउ
एज अ टीम यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब आपने सारी टेस्टिंग दोबारा करनी है तो दैट्स लॉट ऑफ वर्क, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जी दिस इज द मॉडल वी फॉलो एंड we have to follow all the practices that are inbuilt in extreme programming and respect for the team members. ठीक है जी. So these are the values, the different values in extreme programming. Now this is very common extreme programming picture. This is taken from a Pressman book. Now what happens अगर आप इन सारी एक्टिविटीज़ को देखें तो they are same as the ones in the incremental model. ठीक है. There is planning, there is design, there is coding and there is testing. ठीक है. और आप फाइनली आप सॉफ्टवेयर की इंक्रीमेंट को डिलीवर कर रहे हैं. ठीक है. Now they are same, लेकिन again the thing is that these are very small increments. ठीक है जी. Now we'll just have a look at all of them. एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप प्लानिंग करते हैं, ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस किया कि प्लानिंग के अंदर हमने बहुत बड़े बड़े प्लान नहीं बनाने, हमने पूरे प्रोजेक्ट के स्केड्यूल नहीं बनाने. वी जस्ट हैव टू प्लान फॉर द नेक्स्ट इंक्रीमेंट. दैट्स इट. हमने सिर्फ सोचना है कि अगली इंक्रीमेंट के अंदर हमने बनाना क्या है एंड दैट्स इट. तो प्लानिंग के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी टर्म है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर जिसे हम कहते हैं यूज़र स्टोरीज, जो कि अगर आप इस स्लाइड के ऊपर देखें तो ये लिखा हुआ है यूज़र स्टोरीज. अब ये यूज़र स्टोरीज क्या है? हमने ये पढ़ा था कि जो एजाइल मॉडल्स हैं, अभी हमने कुछ स्लाइड्स पहले देखा है कि दे आर ड्रिवन बाय कस्टमर डिस्क्रिप्शंस. ठीक है. तो यूज़र स्टोरीज भी एक तरह की रिक्वायरमेंट्स ही हैं जो कि कस्टमर ने आपको स्टोरी की फॉर्म में फॉर एग्जांपल आपको बताई हुई है कि जी ये करना है आपने रिक्वायरमेंट का, तो यू कैन राइट इट इन फॉर्म ऑफ स्टोरी. ठीक है. अच्छा, फिर आप जब प्लान कर रहे हैं तो एक तो आपके पास यूज़र स्टोरी होनी चाहिए उस इंक्रीमेंट की कि आपने उस इंक्रीमेंट के अंदर कौन सी यूज़र की स्टोरी को इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है. सेकेंड चीज़ क्या है कि आपके पास एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया ये भी डिफाइंड होना चाहिए. ठीक है, कि आपने जब एक इंक्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो उसकी टेस्टिंग के क्या क्राइटेरिया आपके पास. ठीक है. और इसी तरह आपके पूरा, अगर आपके पास ज़्यादा यूजर स्टोरी है तो मे बी यू हैव एन आइटरेशन प्लान एज वेल कि आपने पहली आइटरेशन में कौन सा करना है, दूसरी आइटरेशन में कौन सा करना है. अच्छा, अगेन जब आपकी डिज़ाइन आप करते हैं, ठीक है, तो डिज़ाइन को यू कीप इट सिंपल. ठीक है. You do not put lot of emphasis, as we have discussed it so many times. This is very important that agile models are minimal design models. ठीक है. We keep the design very simple. ठीक है. और another important thing is इसके अंदर आप एक टर्म देख रहे होंगे spike solutions prototypes. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंक्रीमेंट आ गई है, आप जल्दी से उसकी प्रोटोटाइप भी बना सकते हैं. आप वो बनाएं और टेस्ट करें, अगर सही चल रही है तो इट्स गुड, आप उसको यूज़ करें, अदरवाइज डोंट यूज़ इट. ठीक है. और देन बेसिकली वी मूव इनटू आफ्टर डिज़ाइन वी गो इनटू कोडिंग. अच्छा, कोडिंग के अंदर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं पेयर प्रोग्रामिंग. ठीक है. अब पेयर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि बेसिकली टू डेवलपर्स वुड बी सिटिंग ऑन वन मशीन एंड डेवलपिंग समथिंग टुगेदर. फॉर एग्जांपल मैं बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम लिख रहा हूँ, आई एम कोडिंग इट, समबडी वुड बी सिटिंग विद मी एंड ही वुड बी मॉनिटरिंग कि मैं अपना इस एल्गोरिथम को लिखते हुए कोई गलती तो नहीं कर रहा. एंड व्हाई इज दैट? क्योंकि ऑब्वियसली 4 eyes आर बेटर देन 2. अगर 2 बंदे बैठे होंगे तो वो ज़्यादा बेहतर काम करेंगे एक से. और क्योंकि हमारे पास इंक्रीमेंट्स का टाइम इतना कम है कि हमारे पास वी वुड वांट द एरर्स टू बी डिस्कवर्ड व्हेन वी आर राइटिंग द कोड रादर देन हम टेस्टिंग के वक्त हमें पता लगे. तो ये 2 बंदे बैठने का मकसद यही है कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए. ठीक है. और एक और चीज़ कि जब हम कोडिंग इंक्रीमेंट के अंदर कर रहे होते हैं तो हम कोडिंग को जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं. ठीक है. हम ना तो कोडिंग की एफिशिएंसी के ऊपर बहुत जाते हैं, ना शायद उसके स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो कर रहे थे जो हमारे कंपनी वाइड शायद स्टैंडर्ड्स हों कि वेरिएबल नेम की कन्वेंशन ऐसी हो या वो. तो एक चीज़ आप इस कोडिंग के अंदर देख रहे होंगे, कोडिंग के प्रोसेस के अंदर, जैसे ये है रीफैक्टरिंग. अब ये रीफैक्टरिंग का क्या मतलब है? रीफैक्टरिंग का मतलब ये है कि आपने पुराना कोड जो लिखा हुआ है यू कीप ऑन इम्प्रूविंग इट ऑलवेज. ठीक है. यानी कि इन एजाइल मॉडल्स आप जब नई इंक्रीमेंट करते हैं तो आप साथ साथ पुराने कोड को भी इंप्रूव करते जाते हैं. ठीक है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि रीफैक्टरिंग का मतलब यह है कि आप इंक्रीमेंट के अंदर यू हैव अ डेडलाइन, देन यू डोंट वरी अबाउट द स्टैंडर्ड और द क्वालिटी ऑफ द कोड, यू जस्ट वांट टू गेट दैट इंक्रीमेंट डन एंड शो इट टू द कस्टमर. लेकिन रीफैक्टरिंग मीन्स कि हमने गंदी क्वालिटी की चीज़ तो देनी नहीं है, तो वी नीड टू इम्प्रूव इट. सो रीफैक्टरिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दैट कैरीज ऑन इन द एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. अच्छा जी. और कोडिंग के बाद हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं. ठीक है जी. और कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन होती है क्योंकि ये मैंने आपको कहा था कि हर इंक्रीमेंट के बाद आप जो भी चीज़ कस्टमर को देंगे,
ठीक है, दैट शुड ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट, यानी कि जो भी आप नया फीचर इंप्लीमेंट करते हैं इंक्रीमेंट के अंदर, दैट शुड बी एडेड टू द ओवरऑल सॉफ्टवेयर। और हम जो भी चीज़ हर इंक्रीमेंट में लिखते हैं हम उसकी यूनिट टेस्टिंग भी करते हैं। यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल एक रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट की, आपने उसको टेस्ट किया, ठीक है, दैट इज यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग की और एग्जांपल क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल एक फंक्शन लिखा, आपने उसकी यूनिट टेस्टिंग कर दी, यानी कि जो आपने लिखा उसकी टेस्टिंग की। और इसके बाद एक और टेस्टिंग भी होती है जो मैंने आपसे कहा था, हर बिल्ड की हम लोग टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, और हर बिल्ड के लिए हम जो भी हमारे एक्सेप्टेंस टेस्ट के क्राइटेरिया है, वी बेसिकली डू ऑल द टेस्ट केसेस अगेन फॉर एवरी बिल्ड, ठीक है। और आफ्टर द टेस्टिंग फेज, जब हमारी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कंप्लीट हो जाती है, देन वी बेसिकली आर एट द रिलीज लेवल, हमारी एक सॉफ्टवेयर की इंक्रीमेंट तैयार हो जाती है, वी गिव इट टू द कस्टमर, ठीक है जी। और फाइनली हम क्या करते हैं, हम प्रोजेक्ट वेलोसिटी को भी कंप्यूट करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट वेलोसिटी कैसे आएगी, प्रोजेक्ट वेलोसिटी ऐसी आएगी कि फॉर एग्जांपल आपकी पहली इंक्रीमेंट जो थी वो थी शायद 2 वीक्स की, अगली इंक्रीमेंट शायद 1 वीक की थी, तो आप अपने प्रोजेक्ट की देखते हैं कि आप कितना काम कर रहे हैं और कितने ड्यूरेशन में कर रहे हैं, तो यू गेट द प्रोजेक्ट वेलोसिटी। सो अगेन दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। अब हम इन सारी एक्टिविटीज़ को ड्रिल डाउन करके देखते हैं कि प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, डिज़ाइन के अंदर क्या करते हैं, कोडिंग के अंदर क्या करते हैं, व्हाट वी डू इन टेस्टिंग, एंड फाइनली व्हेन वी रिलीज द सॉफ्टवेयर व्हाट वी डू। ओके जी, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का जो सबसे पहली एक्टिविटी थी दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग स्टार्ट विद क्रिएशन ऑफ यूजर स्टोरीज, यानी कि जब आप यूजर से रिक्वायरमेंट्स ले रहे हैं तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज। स्टोरीज क्या है, फॉर एग्जांपल व्हेन यू स्टोरीज की एग्जांपल इसी तरह कि आप किसी बंदे से जाएं, आप उससे कहें जी उसने आपसे कुछ बनवाना है, ठीक है, ही वुड स्टार्ट टेलिंग यू डिफरेंट थिंग्स। और वो स्टोरी का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई कहानी सुनाना शुरू कर देगा, ही वुड बी वेरी क्वालिटेटिव, वेरी नरेटिव इन हिज डिस्क्रिप्शन। वो बताएगा जी मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर ये होना चाहिए, ये इस तरह से प्रोसेस होंगे, यानी कि वो पॉइंट्स के अंदर आपको चीज़ें नहीं बता रहा, बट ही इज टेलिंग यू स्टोरी अबाउट व्हाट ही वांट्स, ठीक है। तो यू बेसिकली रिकॉर्ड दोज रिक्वायरमेंट्स एज यूजर स्टोरीज, ठीक है। प्लानिंग के अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो कि शायद पिछली स्लाइड में आई मिस्ड, दैट इज दिस वैल्यू, ठीक है, कि आप हर यूजर स्टोरी को एक कॉस्ट वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। अब इस वैल्यू का क्या मतलब है कि आप इस वैल्यू के अंदर क्या करते हैं कि जो भी आपकी एजाइल टीम है, ठीक है, यू वुड हैव अ टीम जो कि सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है, उस टीम के अंदर हो सकता है 8-10 लोग हो, ठीक है, दे वुड असेस ईच यूजर स्टोरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास इस फॉर्म के अंदर एक यूजर स्टोरी है, यू हैव अनदर यूजर स्टोरी, यू हैव अनदर यूजर स्टोरी, आपके पास इस तरह यूजर स्टोरीज पड़ी हुई हैं, ठीक है। इसको हम कह देते हैं यूजर स्टोरी 1, इसको 2, ये है 3 और ये है 4, ठीक है, यू हैव 4 यूजर स्टोरीज। अब आपकी एजाइल टीम क्या करेगी, दे विल सिट टुगेदर एंड दे विल असाइन अ कॉस्ट, ठीक है। अब कॉस्ट के सेंस में होगी, कॉस्ट के सेंस में होगी कि फॉर एग्जांपल इस यूजर स्टोरी को करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है, वेदर इट विल टेक कितने दिन लेगी, वेदर इट विल टेक 3 days और 4 days, तो ये कॉस्ट वैल्यू के अंदर हम इस तरह की चीज असाइन करते हैं, ठीक है। देन व्हाट वी डू इज कि आप इनको इंक्रीमेंट वाइज इन स्टोरीज को ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि हाउ डू वी डिसाइड कि कौन सी यूजर स्टोरी को पहले करना है, ठीक है। तो आप कस्टमर से पूछते हैं कि भाई कौन सी यूजर स्टोरी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यूजुअली जो क्रिटिकल यूजर स्टोरीज होती हैं वो हम पहले डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो फिर हम अपनी इंक्रीमेंट की डेट देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहली बारी यूजर स्टोरी ने 3 दिन लेने थे, अगली बारी यूजर स्टोरी ने 4 दिन लेने थे, ठीक है, तो इन ऑल इट मेक्स 7 days। तो अगर आपकी पहली इंक्रीमेंट जो आपने या पहली डिलीवरी 7 दिन बाद करनी थी, तो यू कैन से कि जी मैं पहली इंक्रीमेंट के अंदर यूजर स्टोरी 1 और यूजर स्टोरी 2 को इंप्लीमेंट करूंगा, ठीक है। तो इस तरह आप एक कमिटमेंट, नाउ व्हेन वी से अ कमिटमेंट इज मेड ऑन अ डिलीवरी डेट, तो इस कमिटमेंट के अंदर सिर्फ यही नहीं होता कि आप कस्टमर से कमिटमेंट करते हैं, इट्स कमिटमेंट अमंग योर टीम एज वेल, ठीक है। आप जिसको जो काम असाइन करते हैं, यू टेक अ कमिटमेंट फ्रॉम हिम दैट यू नीड टू गेट दिस डन बाय द एंड ऑफ दिस डेट, ठीक है। सो द कमिटमेंट इज नॉट बिटवीन द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द कस्टमर, बट द कमिटमेंट इज अमंग ऑल द एजाइल टीम मेंबर्स, ठीक है, एंड कस्टमर इज अ पार्ट ऑफ दैट टीम। आफ्टर द फर्स्ट इंक्रीमेंट, प्रोजेक्ट वेलोसिटी इज यूज्ड टू हेल्प डिफाइन सब्सिक्वेंट डिलीवरी डेट्स फॉर प्रोजेक्ट वेलोसिटी। क्या है कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपने इंक्रीमेंट की इतने दिन चूज किए थे और उतने दिन में आपने काम किया कि नहीं किया। अगर तो योर वेलोसिटी यू बेसिकली मैच दैट, ठीक है, यानी कि आपने जितने दिन का एस्टिमेट दिया था आपने उतने दिन में वो काम करके दे दिया, ठीक है, तो आप अपनी नेक्स्ट इंक्रीमेंट्स को उसी हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक
ठीक है। लेकिन इफ़ योर वेलोसिटी इज स्लो एंड यानी कि आपने जो काम करना था आपने उससे डिले किया, तो यू नीड टू एडजस्ट योर इंक्रीमेंट्स मे बी, ठीक है। तो इस तरह से प्लानिंग के अंदर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू बिगिन विद, वी ऑलवेज बिगिन विद यूजर स्टोरीज। फिर जब हमारे पास यूजर स्टोरीज आ जाते हैं तो वी नीड टू असाइन कॉस्ट टू ईच यूजर स्टोरी, यानी कि हमें ये डिसाइड करना होता है कि हर यूजर स्टोरी में हमें कितने दिन लगेंगे, ठीक है, या कितना टाइम में हम एक काम करेंगे या कितनी, ठीक है। उसकी बेसिस के ऊपर आप स्टोरीज को फिर ग्रुप करते हैं कि एक इंक्रीमेंट के अंदर आपने कितनी यूजर स्टोरीज देनी है, ठीक है। एंड फाइनली आपकी एक टीम लेवल कमिटमेंट होती है, और जब आप पहली इंक्रीमेंट कंप्लीट कर देते हैं तो यू आर इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट द प्रोजेक्ट वेलोसिटी, ठीक है। और प्रोजेक्ट वेलोसिटी इज दैट वेदर यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड एन इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन योर कमिटमेंट और नॉट. If you do, then you basically decide on the next increments. If not, then you need to adjust your velocity. ठीक है जी. Now this is what we do in extreme programming planning. ठीक है जी. अब इसके अंदर अगर आप देखें तो हम complete सॉफ्टवेयर की टाइम Gantt charts नहीं बना रहे, ठीक है. Now there is a difference between this and the other models. इसके अंदर हम प्लानिंग के अंदर सिर्फ हमारा एम्फेसिस क्या है कि हमने इंक्रीमेंट्स में जो काम करना है उसको आइडेंटिफाई किया, ठीक है, और उनको वैल्यूज असाइन किए. Next thing is XP design. Now this is very important कि agile models they say they are KIS models, which means keep it simple. ठीक है, जिसका मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूँ. keep it simple का मतलब है कि we are not worried about too much designing. ठीक है, हमें बस प्रॉब्लम का पता लगा, we start doing it. एक कॉन्सेप्ट होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जिसे हम कहते हैं क्लास मॉडलिंग के अंदर, हम आगे जाके भी देखेंगे, जिसे हम कहते हैं CRC कार्ड. ये होते हैं क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्ड्स. ठीक है, इसके अंदर ये रिकमेंड किया जाता है कि आप इनको यूज़ करें, क्योंकि इनका फ़ायदा क्या होता है कि दे टेल यू कि आपका अगर फॉर एग्जांपल क्लास बेस्ड सोल्यूशन है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सोल्यूशन जिसके अंदर मल्टीपल क्लासेस है, तो इट विल टेल यू कि कौन सी क्लास दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है. तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक इंक्रीमेंट है, उस एक इंक्रीमेंट से आप दूसरी के अंदर चेंज करते हैं और आपको पता लगता है कि यार दूसरी क्लास भी इफेक्ट होगी, तो दिस इज़ अ गुड वे और अ क्विक वे ऑफ जजिंग कि आपकी एक इंक्रीमेंट से क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी, सो दैट यू डोंट गेट इनटू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो CRC कार्ड्स आर एनकरेज्ड टू बी यूज्ड इन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग डिज़ाइन. और अगर कोई इंक्रीमेंट आपकी मुश्किल है, ठीक है, हमने एक डिज़ाइन के अंदर एक चीज़ देखी थी जिसे हमने कहा था स्पाइक सोल्यूशन. ठीक है, यहाँ पे भी इस स्लाइड के अंदर मेंशन किया गया है कि स्पाइक सोल्यूशन. तो इसके अंदर ये कहा गया कि अगर इफ़ देयर इज़ अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम तो यू क्रिएट अ डिज़ाइन प्रोटोटाइप, जिसे हम कहते हैं स्पाइक सोल्यूशन. यानी कि फॉर एग्जांपल आपका अगर सोल्यूशन स्पेस इस तरह चल रही है ना, तो जब मुश्किल प्रॉब्लम आई तो मे भी इस तरह चली जाएगी. ठीक है, ये स्पाइक क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि मुश्किल प्रॉब्लम की आपने ज़्यादा एफर्ट करके एक प्रोटोटाइप बनाई एंड देन यू मूव बैक टू योर ओरिजिनल वेलोसिटी. और डिज़ाइनिंग के अंदर वी एनकरेज रीफैक्टरिंग. ठीक है जी, यानी कि जो आपकी रिफाइनमेंट है दैट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस. जिस तरह मैंने कोडिंग के अंदर भी आपको रिफैक्टरिंग का बताया था कि इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, आपका वो चलता रहेगा. ठीक है. The next thing in the extreme programming or the next is XP coding. ठीक है जी. कोडिंग आप स्टार्ट करने से पहले आप जो भी इंक्रीमेंट करने जा रहे होते हैं आप उसकी यूनिट टेस्ट लिख लेते हैं. ठीक है जी, यानी कि इट रिकमेंड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ यूनिट टेस्ट फॉर अ स्टोर बिफोर फॉर अ स्टोरी. इट शुड बी अ स्टोरी बिफोर कोडिंग कमेंसेस. there is a slight mistake here. ये जो this should be a story. ठीक है, so for every story you create a unit test and before you commence coding. और एक चीज़ हमने जो XP कोडिंग के अंदर पिछली स्लाइड में जब हमने वो डायग्राम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की वो डिस्कस उसके अंदर हमने की थी कि the coding is done in pairs. ठीक है, so if I am the developer I won't be coding alone. There would be somebody else who would sit with me and he would be looking at my code once I am writing it. यानी कि अगर उसे कोई भी लॉजिकल गलती नजर आती है या सिंटैक्स की गलती नजर आती है तो he would straight away point out यार you are doing this wrong, please correct it. तो इस तरह आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है when you do programming in pairs. Okay जी, the final phase in extreme programming process model is testing. ठीक है, पहली चीज़ तो क्या है कि we all the unit tests are executed daily. ठीक है, ये चीज़ तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी यूनिट टेस्ट आपने हर यूजर स्टोरी के लिखे थे वो डेली यू एग्जीक्यूट देम. ठीक है, डजेंट मैटर आपकी इंक्रीमेंट आज देनी है आपने नहीं देनी, यू एग्जीक्यूट देम डेली. ठीक है, और एक्सेप्टेंस टेस्ट आर जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हमने ये प्लानिंग में देखा था कि जो एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया ये हम प्लानिंग फेज पे डिसाइड कर लेते हैं और दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द कस्टमर. ठीक है जी, और व्हेनेवर वी हैव अ न्यू बिल्ड वी डू दिस टेस्ट. ठीक है, तो यूनिट टेस्ट आप डेली करते हैं और एक्सेप्टेंस टेस्ट before every build in extreme programming. So we've seen that extreme programming के अंदर क्या होता है हमारे पास, we have planning जिसके अंदर हम user stories
डिसाइड करते हैं, हर यूज़र स्टोरी को वैल्यू असाइन करते हैं, यूज़र स्टोरीज को ग्रुप करते हैं कि कौन सी इंक्रीमेंट के अंदर कितनी यूज़र स्टोरी आपने देनी है। फिर हमारी टीम लेवल कमिटमेंट होती है, उस कमिटमेंट के बाद हम अपनी जब पहली इंक्रीमेंट दे देते हैं फिर हम वेलोसिटी मेजर करते हैं। देन कम्स एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग डिज़ाइन। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर हमने देखा है कि डिज़ाइन का मतलब क्या है, कीप इट सिंपल। So we don't put a lot of effort in designing, but our focus is on implementation, ठीक है। और कोडिंग के अंदर हम कहते हैं कि we code in pairs, ठीक है। और कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हम हर यूजर स्टोरी के यूनिट टेस्ट डिफाइन कर लेते हैं। एंड द फाइनल फेज इज टेस्टिंग। टेस्टिंग के अंदर हमने डिस्कस किया कि यूनिट टेस्ट जितने भी होते हैं वी डू देम डेली, ठीक है। और जो आपके एक्सेप्टेंस टेस्ट हैं वी डू दैट बिफोर एवरी बिल्ड या बिफोर वी डिलीवर टू द कस्टमर। और ये जो एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया दैट इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ द कस्टमर, ठीक है जी। फ्यू एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग और एजाइल प्रिंसिपल्स का जरा सा कंपैरिजन कि इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट इज सपोर्टेड थ्रू स्मॉल फ्रीक्वेंट सिस्टम रिलीजेस, क्योंकि हमने एजाइल प्रिंसिपल्स के अंदर देखा था कि डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीमेंटल होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कैसे इंश्योर करता है इंक्रीमेंटल डिलीवरी को, क्योंकि हमने अभी देखा है कि वी हैव स्मॉल रिलीजेस ऑफ सॉफ्टवेयर। स्मॉल रिलीज का मतलब है हमने देखा था कि मैक्सिमम जो एक इंक्रीमेंट है दैट इज आई थिंक 2 वीक्स, ठीक है। सो दैट्स हाउ द एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इंश्योर्स इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। और कस्टमर इन्वॉल्वमेंट का एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में मतलब क्या है कि इट्स अ फुल टाइम एंगेजमेंट, ठीक है। यानी कस्टमर शुड बी पार्ट ऑफ द टीम, पार्ट ऑफ द एजाइल टीम, ठीक है। ही शुड बी देयर व्हेनेवर यू नीड फीडबैक फ्रॉम हिम। इफ ही इज नॉट देयर तो आपका एजाइल मेथड या एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग दैट वुड फेल। और पीपल नॉट प्रोसेस वाला एजाइल प्रिंसिपल एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कैसे, क्योंकि ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए थे कि कस्टमर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट होनी चाहिए, पीपल नॉट प्रोसेस होना चाहिए, एम्ब्रेस चेंज होना चाहिए और मेंटेन सिंप्लिसिटी। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू कंपेयर हियर कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग ये सारे एजाइल प्रिंसिपल्स फॉलो करती है कि नहीं करती, ठीक है। तो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट के अंदर हमने दैट इज वेरी क्लियर कि कस्टमर एंगेजमेंट, कस्टमर शुड बी एंगेज्ड थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है जी। और आखिरी चीज़ क्या है, पीपल नॉट प्रोसेस, नॉट द थर्ड वन इज पीपल नॉट प्रोसेस। तो हाउ डू वी इंश्योर दैट, इसके हमने बहुत सी चीज़ें हमने देखी हैं कि हमारा एम्फेसिस लोगों के ऊपर है, प्रोसेस के ऊपर हम ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। फर्स्ट वन इज कि जब आप पेयर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो यू हैव पीपल आर वर्किंग टुगेदर, देन यू हैव कलेक्टिव ओनरशिप। जो आपने कमिटमेंट की है वो ओवरऑल टीम की कमिटमेंट होती है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट मैनेजर या एक कस्टमर के दरमियान नहीं है। इट्स अ होल कमिटमेंट बाय द एजाइल टीम, ठीक है जी। और इट्स अ प्रोसेस जिसके अंदर आपको हो सकता है ज़्यादा घंटे भी बैठना पड़े, ठीक है। दिस डज हैपन। आई हैव सीन मैनी कंपनीज हु आर फॉलोइंग आइदर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग और स्क्रम। When that there is a delivery for an increment, then they have to sit late, क्योंकि उनकी builds उनको उस दिन complete करनी होती, ठीक है। और change is supported through regular, क्योंकि हमने एक principle पढ़ा था agile का कि it should embrace change। तो जब आपकी regular system releases आ रही हैं तो obviously it's basically embracing changes। और मेंटेन सिंप्लिसिटी थ्रू कॉन्स्टेंट रिफैक्टरिंग ऑफ कोड, क्योंकि देखें सिंप्लिसिटी कई तरह से एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इंश्योर करता है। पहली बात तो ये कि डिज़ाइन सिंपल होता है, ठीक है। और हमने देखा था कि हम डिज़ाइन एज एन आइटरेटिव रिफाइनमेंट, हम थ्रू आउट से इंप्रूव करते हैं। इसी तरह जब हम कोडिंग कर रहे हैं तो हम कोडिंग के अंदर भी उसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट करने की या ऑप्टिमाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे होते जब लिख रहे होते हैं। वी बेसिकली ट्राई टू फिनिश आवर जॉब, तो उस वक्त वी कीप इट सिंपल एंड देन वी कीप ऑन इम्प्रूविंग इट। सो वी सी कि एक्सट्रीम programming is fully in line with the agile principles that we saw and we discussed. Okay ji, now we'll just have a look at these agile principles in terms of extreme programming in slightly more detail. The customer involvement is a key part of extreme programming, ठीक है जी। और ये चीज़ I think I have emphasized this enough कि जो कस्टमर है दैट इज पार्ट ऑफ एजाइल टीम। नॉर्मली जो ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि इफ दिस गाय इज द कस्टमर, ठीक है, और आपका यहाँ पे कोई प्रोसेस मॉडल है, यहाँ पे आपकी ये डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, तो कस्टमर जो है वो बाहर से आपको चीज़ें बता रहा होता है, ठीक है। ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द टीम, ही इज समबडी। यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं ट्रेडिशनल के अंदर, कस्टमर इज एन आउटसाइड एंटिटी, ठीक है। तो लेकिन जो व्हाट हैपेंस इन एजाइल, ठीक है, ये हम कह देते हैं कि दिस इज ट्रेडिशनल मॉडल्स, ठीक है। वेयर एज इन केस ऑफ एजाइल अगर आपकी डेवलपमेंट टीम ये है तो ये आपका कस्टमर जो है
दिस इज पार्ट ऑफ दिस बाउंड्री, यानी कि कस्टमर इज पार्ट ऑफ दिस टीम. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस. ठीक है, एक के अंदर आपने कस्टमर से सिर्फ चीज़ें ली, उसको अपनी टीम के अंदर डिसाइड किया और जो आपकी कमिटमेंट थी उसके अंदर कस्टमर भी शामिल है. लेकिन एजाइल के अंदर कस्टमर को आप रियलाइज़ कराते हैं कि यार यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यू आर पार्ट ऑफ आवर टीम. ठीक है जी. और तो कस्टमर का रोल देखें कितना इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल फॉर द कस्टमर इज इट बेसिकली हेल्प्स यू डेवलप दोज यूजर स्टोरीज, क्योंकि ये यूजर स्टोरीज के बगैर तो आपका काम चल ही नहीं सकता. ठीक है, तो कस्टमर हेल्प्स यू इन दैट, और ये यूजर स्टोरीज से ही आपकी रिक्वायरमेंट्स बनती हैं. ठीक है, दे बेसिकली यूज यूजर स्टोरीज, दे ट्रांसलेट इनटू द यूजर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है जी. देन व्हाट कस्टमर डज इट बेसिकली हेल्प्स यू इन प्रायोरिटाइजिंग. जिस तरह मैंने आपसे ये कहा था कि अगर हमारे पास ज़्यादा यूजर स्टोरीज आ गई हैं या ज़्यादा यूजर रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, तो हमें कस्टमर की हेल्प से उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी यूजर स्टोरीज ज़्यादा क्रिटिकल है हमारे सॉफ्टवेयर के लिए या कस्टमर के लिए ज़्यादा क्रिटिकल है. जो इंपॉर्टेंस जिनकी ज़्यादा होगी हम हमेशा उन्हीं को इम्प्लीमेंट करेंगे. ठीक है, उसके बाद टू हेल्प डेवलप एक्सेप्टेंस टेस्ट. ठीक है, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करनी है तो हमने ये प्लानिंग फेज के अंदर देखा था कि जो एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया है दैट इज डिफाइंड बाय सिटिंग विद द कस्टमर, कि यू डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ द कस्टमर. सो कस्टमर के बड़े इंपॉर्टेंट रोल है. पहले तो आपको वो रिक्वायरमेंट्स बताता है, फिर उनको प्रायोरिटाइज करवाता है, फिर आपके साथ वो एक्सेप्शन टेस्ट क्राइटेरिया बनाता है मिलके बैठ के. सो कस्टमर हैज़ अ ह्यूज रोल इफ़ यू वांट टू फॉलो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. अच्छा जी, रिक्वायरमेंट सिनेरियोज को ज़रा देखते हैं कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या होते हैं. इन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग यूज़र रिक्वायरमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज सिनेरियोज और यूज़र स्टोरीज. ठीक है जी. दिस इज हाउ इट एक्चुअली हैपन्स कि दीज एक्चुअली ये literally the user or basically the guy who is there to collect requirements from the customer, they write it on card. यानी कि आप फॉर एग्जांपल जो आपकी यूजर स्टोरीज होती है वो इस फॉर्म में लिखी हुई होंगी. ठीक है, नाउ देयर वुड बी सम टेक्स्ट रिटन इन दिस यूजर स्टोरी. ठीक है, बहुत सी लाइनें होंगी, हो सकता है 15-20 लाइनें हो. अब आपकी जो डेवलपमेंट टीम है वो क्या करती है कि वो इस पूरी यूजर स्टोरी को लेती है और इसके अंदर से वो टास्क आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा इस पूरी यूजर स्टोरी को करने के लिए हमारे कितने T1, T2, T3, T4 आई डोंट नो मे बी 5 डिफरेंट डिस्टिंग्विशेबल एक्टिविटीज़ या टास्क निकल आए कि हम ये 5 टास्क करेंगे तो हमारी ये यूजर स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, फिर क्योंकि हर यूजर स्टोरी से मैंने अपने डिस्कस किया था कि हमने हर यूजर स्टोरी को एक वैल्यू देनी है, और वैल्यू किस फॉर्म में देनी है कि इस काम को करने के लिए हमें कितने दिन लगेंगे. ठीक है, तो जब आपने ये एक यूजर स्टोरी को इन सारे टास्क में डिवाइड कर दिया तो इन टास्क में डिवाइड करने का क्या फ़ायदा होगा, आपको एक रियलिस्टिक और यहाँ एक अच्छी एस्टिमेशन आप कर सकते हैं कि मुझे इस यूजर स्टोरी को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे. फिर कस्टमर क्या करता है, इट्स बेसिकली कस्टमर्स जॉब टू हेल्प यू आइडेंटिफाई, जो हमने पिछली साइड में भी देखा कि कौन सी वाली यूजर स्टोरीज को नेक्स्ट इंक्रीमेंट के अंदर या नेक्स्ट बिल्ड के अंदर आपने कर देना है या कौन सी को नहीं करके देना. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी बेसिकली असाइन वैल्यूज. क्योंकि एक चीज आपको मैं जो आई थिंक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर इज कि व्हाई डू वी नीड टू डिवाइड इट दिस यूजर स्टोरी इनटू टास्क्स. ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास एक टेक्स्ट लिखा हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि जी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सोल्यूशन आपने बनाना है जिसके अंदर आपको एक स्टूडेंट मॉड्यूल होगा. मैं आपको बहुत ब्रॉडली टर्म्स में बताऊँ कि जी हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स फीस पे करते हैं, कोर्स रजिस्टर करते हैं, और हमारा HR है जिनको सैलरीज अकाउंट से जाती है. आई विल गिव यू दिस होल सिनेरियो. इसकी बेसिस पे मैं आपको कहूँ इस पैराग्राफ को पढ़ें और मुझे बताएं कि आप ये पूरा काम कितने दिनों में करके देंगे. नाउ दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल फॉर यू. ठीक है, सो नॉर्मली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है कि यू ट्राई टू आइडेंटिफाई टास्क्स फ्रॉम अ डिस्क्रिप्शन. तो दैट इज़ व्हाट वी डू इन यूजर स्टोरी. आप हर यूजर स्टोरी के अंदर से वो टास्क निकालते हैं, उन टास्क के बेसिस के ऊपर आप कॉस्ट असाइन करते हैं विच इज़ इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ मैन आवर्स जो आपकी डेवलपमेंट में लगेंगे, और फिर आप उनको एक पूरी यूजर स्टोरी को एक वैल्यू असाइन करते हैं विच इज़ मोर रियलिस्टिक. ठीक है, और इट गिव्स यू बेटर एस्टिमेट्स. अच्छा जी, आमतौर पे दिस इज़ एन एग्जांपल कि आपका जो स्टोरी कार्ड है वो किस तरह का होता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल डाउनलोडिंग एंड प्रिंटिंग एन आर्टिकल. ठीक है, अब ये पूरी स्टोरी लिखी हुई है कि फर्स्ट यू सेलेक्ट द आर्टिकल दैट यू वांट फ्रॉम अ डिस्प्लेड लिस्ट, यू देन हैव टू टेल द सिस्टम हाउ यू विल पे फॉर इट. दिस कैन आइदर बी थ्रू अ सब्सक्रिप्शन, थ्रू अ कंपनी अकाउंट और बाय क्रेडिट कार्ड. ठीक है, after this you get a copyright from the system to fill in, and you have submitted this, the article you want is downloaded onto your computer. You then choose a printer
and a copy of article is printed, you tell the system if the printing has been successful. If the article is print only article, you cannot keep the PDF version, so it is automatically deleted from your computer. अब इस पूरे स्टोरी कार्ड को आप देखें, जिसको हमने कहा था कि ये जो पूरी यूजर स्टोरी है वो एक कार्ड की फॉर्म में लिखी जाती है, इसके अंदर यू कैन आइडेंटिफाई लॉट ऑफ डिफरेंट टास्क. ठीक है, जिस तरह पहली चीज़ क्या है कि आपने आर्टिकल को सिलेक्ट किया. ठीक है, ठीक है, यानी कि पहली चीज़ तो ये है कि आपने सर्च किया और आपने उस आर्टिकल को एक को सिलेक्ट कर लिया. ठीक है, द नेक्स्ट टास्क दैट यू हैव टू डू इज बेसिकली आपने अब पेमेंट करनी है. ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, आप हमें अगर हम इसके टास्क लिखना शुरू करें तो मे बी द फर्स्ट वन इज सिलेक्शन. ठीक है, सेकेंड वन इज पेमेंट. ठीक है, कि आपने पेमेंट कैसे करनी है. ठीक है, और थर्ड वन इज जो थर्ड टास्क उसका होगा मे बी दैट वुड बी कॉपीराइट. ठीक है, थर्ड वन इज कॉपीराइट. ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा दैट माइट बी फिर आपका नेक्स्ट है प्रिंटिंग. ठीक है, तो इस तरह आप लिस्ट बनाते जाते हैं कि इस पूरी स्टोरी में से मेरे इतने टास्क बन रहे हैं और इन टास्क के बेसिस के ऊपर आप एस्टिमेशन ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं. अच्छा जी, अब एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग और चेंज क्या है कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में चेंज कैसे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग फैसिलिटेट करती है चेंज को. तो लेट्स सी, कन्वेंशनल विजडम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज टू डिज़ाइन फॉर चेंज. ठीक है, अब ये एक बड़ी कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट है क्योंकि जो लोग एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के फॉलोअर्स हैं या जो एजाइल के फॉलोअर्स हैं दे बिलीव इन चेंज, लेकिन जो दूसरी साइड ऑफ द पिक्चर है व्हाट दे से इज दे से कि हमें प्लान करना चाहिए, चेंज के लिए भी प्लान करना चाहिए. लेकिन इसके अंदर बेसिकली एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग वाले लोग कहते हैं कि इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग टाइम एट एफर्ट इन, क्योंकि आपको जब आप चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना देन यू डोंट वरी अबाउट प्लान्स, क्योंकि आपको पता है आपके प्लान शायद यू नो दे वुड चेंज बिकॉज ऑफ द चेंज. ठीक है, और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है. ये जिस समय आपसे कह रहा था ना कि जो एजाइल के या एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंगेज जो लोग हैं दे से कि यू इवन नीड टू प्लान फॉर चेंज. ठीक है, और अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे या टाइम स्पेंड करेंगे, नॉट वेस्ट, अगर आप एफर्ट लगाएंगे और टाइम स्पेंड करेंगे चेंज के लिए प्लान करने में, तो आपकी जो कॉस्ट है बाद में जब वो चेंज आएगी या जो चेंज का इम्पैक्ट होगा वो कम से कम होगा, क्योंकि आपने पहले उसके लिए प्लान किया हुआ था, यू आर एंटिसिपेटिंग दैट चेंज. ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या कहती है कि इट इज़ नॉट वर्थ वाइल, ये जो आपने प्लानिंग करनी है इसका फ़ायदा ही कोई नहीं है. ठीक है, क्योंकि चेंज तो आनी है. हो सकता है आपने जो प्लान बनाए वो भी सारे ख़राब हो जाए चेंज की वजह से. तो अगर आपने पहले 15 दिन उस प्लान में लगा दिए और बाद में चेंज है वो प्लान ही ख़राब हो गया तो क्या फ़ायदा. दिस इज़ व्हाट एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग बिलीव्स. और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इन्हीं चीज़ों को देखते हुए द थिंग इज दैट, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि रीफैक्टरिंग हम कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं. वी डू रीफैक्टरिंग इन डिजाइन, वी डू रीफैक्टरिंग इन कोडिंग. ठीक है, तो दिस इज व्हाट एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग डज एंड दैट्स हाउ इट फैसिलिटेट्स और दैट्स हाउ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग थिंक्स ऑफ चेंज. अच्छा जी, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट रीफैक्टरिंग. रीफैक्टरिंग मैंने आपसे बार बार जिक्र किया. रीफैक्टरिंग होता क्या है? Refactoring is the process of code improvement where code is reorganized and rewritten to make it more efficient, easier to understand. जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि कई इस तरह के काम हो सकते हैं जो कि आप शायद 2 फॉर लूप्स में भी कर सकते हैं और 1 फॉर लूप लगा के भी कर सकते हैं. अब अगर 2 फॉर लूप्स लगेंगे तो आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है. ठीक है, इट्स मे बी ऑर्डर ऑफ n². ठीक है, और 1 फॉर लूप के केस में इट्स ऑर्डर n. ठीक है, तो आप जब हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो हम इन एफिशिएंसी के बारे में, एफिशिएंसी इज़ नॉट आवर मेन कंसर्न. हमारा मेन कंसर्न क्या है कि हमने अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर को उस जो डिलीवरी डेट है उस पर डिलीवर करना है. ठीक है, दिस इज़ आवर बिगेस्ट कंसर्न. ठीक है, तो वी डू नॉट वरी अबाउट कि हमारा जो वी डू नॉट वरी अबाउट एफिशिएंसी. तो रीफैक्टरिंग का प्रोसेस क्या कहता है कि आपने जो कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है आप उसको एफिशिएंट बनाएं और ईजियर टू अंडरस्टैंड बनाएं. ठीक है जी, और रीफैक्टरिंग हम क्यों करते हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर? उसकी वजह क्या है कि हमारी रिलीजेज जो होती हैं बहुत फ्रीक्वेंट होती हैं. ठीक है, और क्योंकि आप हर रिलीज के लिए जब कोड लिखना शुरू करते हैं तो यू नो इट माइट गेट मेसी. ठीक है, हो सकता है एक काम एक बंदे ने किया था, दूसरा काम दूसरे बंदे ने किया और दोनों का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो. तो जब आप रीफैक्टरिंग करते हैं तो यू बेसिकली मेक देम सिमिलर. आप उनको एक तरह की करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इन द एंड इट्स योर कंपनीज प्रोडक्ट. ठीक है जी, और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रीफैक्टरिंग शुड बी सीमलेस.
जब आप कोड को रिफैक्टर करें तो उससे आपकी प्रोडक्ट पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर फ़र्क पड़ता है तो दिस इज़ नॉट गुड रिफैक्टरिंग, क्योंकि आपने तो अपनी प्रोडक्ट को ही ख़राब कर दिया, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिफैक्टरिंग। और एक और चीज़ जो कि रिफैक्टरिंग को फैसिलिटेट करती है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर, वो है ऑटोमेटेड टेस्टिंग, ठीक है। हमने जिस तरह ये देखा कि हम यूनिट टेस्ट को डेली करते हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर, वी डू यूनिट टेस्टिंग डेली। जितने भी हमारे यूनिट टेस्ट यूजर स्टोरीज के लिखे गए हैं, वी टेस्ट देम डेली। और हमारे एक्सेप्टेंस टेस्ट हर बिल्ड के ऊपर होता है। तो ये जो टेस्टिंग हम डेली करते हैं, इट इंश्योर्स कि जब आप रीफैक्टरिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक इंक्रीमेंट दे दी और अभी नेक्स्ट इंक्रीमेंट में टाइम है, आपकी टीम बैठी कोड को रीफैक्टर कर रही, आपने जाते हुए सारे टेस्ट केसेस जब दोबारा चलाए तो आपको पता लग जाएगा कि रीफैक्टरिंग जो की है उसकी वजह से कोई बग तो नहीं आ गया, ठीक है। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एक्चुअली मेक श्योर कि जो आप रीफैक्टरिंग कर रहे हैं दैट इज सीमलेस, ठीक है। और टेस्टिंग इन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, के टेस्टिंग एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कैसे करती है कि एक तो ये टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। जिस तरह हमने देखा कि जब हम प्लान ही कर रहे हैं तो हम अपना एक्सेप्टेंस टेस्ट का क्राइटेरिया उन यूजर स्टोरीज के अंगेंस्ट उसी वक्त डिफाइन कर रहे हैं। इसी तरह जब हम कोड करने जा रहे हैं तो कोड करते हुए भी हमने पहले यूनिट टेस्ट डिफाइन की, फिर हमने कोडिंग स्टार्ट किया। तो टेस्टिंग इज गिवन लॉट ऑफ एम्फेसिस इन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, क्योंकि इसकी कई रीजंस हैं। क्योंकि हम पहली बात तो ये कोडिंग की एफिशिएंसी पे भी नहीं जा रहे, हम डिजाइन पे भी बहुत एफर्ट नहीं लगा रहे, तो कहीं तो हमें इंश्योर करना है अपनी क्वालिटी को, एंड दैट इज इन टेस्टिंग। क्योंकि एटलीस्ट हम चाहते हैं जो फंक्शनैलिटी हमने कस्टमर को दी है, देयर शुड नॉट बी एनी बग इन दैट, ठीक है। और इंक्रीमेंटल टेस्ट डेवलपमेंट फ्रॉम सिनेरियोज, जो आपको सिनेरियोज दिए गए हैं उनसे आप इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है जी। और यूज़र की इन्वॉल्वमेंट आपकी थ्रू आउट है। यूज़र ने आपसे जब एक्सेप्टेंस टेस्ट बनवाए तब भी यूज़र वॉज देयर, ठीक है। और ऑटोमेटेड टेस्टिंग क्या करती है? ऑटोमेटेड टेस्ट हार्नेसेस are used to run all the component tests each time that new release is built। अच्छा, एक टेस्टिंग के बहुत से ऑटोमेटेड टूल्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि विच हेल्प्स यू, क्योंकि अगर आपने एक बंदा टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है, वो रोजाना एक ही काम करता है, इट गेट्स वेरी लेबोरियस, ठीक है, इट गेट्स वेरी बोरिंग, ठीक है। तो आप ऑटोमेटेड टेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने यूनिट टेस्ट डेली टेस्ट चलाने हैं। तो हो सकता है आपने 9 to 5 काम किया, जाते हुए आप ऑटोमेटेड टेस्टिंग चला कर चले गए, सुबह आए तो आपको एक बग रिपोर्ट मिल जाए कि जी कोई प्रॉब्लम थी या नहीं थी, ठीक है। तो यूजुअली ऑटोमेटेड टेस्टिंग एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ की जाती है। अच्छा जी, जो हमने पीछे वो देखे थे, आई थिंक दिस स्लाइड शुड हैव बीन मच अर्लियर, जो हमने पीछे देखे थे वो कि आपने कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है, उसके क्या क्या टास्क थे। तो इस तरह से आप टास्क आइडेंटिफाई करते हैं, जिस तरह हमने उसके अंदर भी कुछ टास्क सोचे थे। क्या है? इम्प्लीमेंट प्रिंसिपल वर्क फ्लो, इम्प्लीमेंट आर्टिकल कैटलॉग एंड सिलेक्शन। हमने भी पहला एक सिलेक्शन बनाया था, फिर हमने कहा था पेमेंट है, ठीक है। तो इन्होंने भी उसी तरह किए हुए हैं। पहला टास्क इम्प्लीमेंट प्रिंसिपल वर्क फ्लो बनाया हुआ है, फिर इम्प्लीमेंट आर्टिकल कैटलॉग एंड सिलेक्शन है, तीसरा टास्क इम्प्लीमेंट पेमेंट कलेक्शन है। तो दिस डिपेंड्स कि आपका टास्क आप किस तरह से डिफाइन करते हैं। इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन, ठीक है। लेकिन यू नीड टू डिवाइड अ यूजर स्टोरी इनटू डिफरेंट टास्क, और हर टास्क के अंदर भी आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर से एम्बिग्यूटी कम होती जाती है, ठीक है। और आपके जितनी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन होगी उसकी बेसिस के ऊपर आपकी जो एस्टिमेट है उस यूजर स्टोरी का, वो ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा क्लोज टू रियलिटी निकलेगा, ठीक है जी। और इनकी बेसिस के ऊपर आप जो टेस्ट केसेस डिफाइन करते हैं उनकी आप डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, ठीक है। टेस्ट केस, क्योंकि आपको हर टास्क के अगेंस्ट आपको एक टेस्ट केस लिखना है, ठीक है। जिस तरह आपने टेस्ट किया क्रेडिट कार्ड वैलिडिटी, ठीक है, उसके अंदर इनपुट आपकी क्या है? जब आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपने आपका जो सिस्टम आप इंप्लीमेंट करके दे रहे हैं, इट शुड मेक श्योर कि जो आपका क्रेडिट कार्ड यूज़र एंटर कर रहा है वो वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। तो आप उसके अंदर इनपुट क्या हो रही है? इनपुट उसके अंदर हो रहा है कार्ड नंबर हो रहा है, और क्रेडिट कार्ड के पीछे एक पिन होता है, सिक्योरिटी पिन, वो एंटर हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो टेस्ट क्या करेगा? वो पहले तो आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर की वैलिडिटी को देखेगा, फिर उसका इशुएंस का ईयर को देखेगा कि वो अभी तक आपका क्रेडिट कार्ड वैलिड भी है कि नहीं है, ठीक है, और आपका कई लिमिट से ज़्यादा तो नहीं हो चुका। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर आपको कहना चाहिए ओके, अदरवाइज यू से कि जी योर कार्ड इज़ नॉट वैलिड और समथिंग लाइक दैट। अच्छा जी, इसके बाद ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज़ टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट, ठीक है जी। हम पहले टेस्ट केस लिखते हैं और फिर हम डेवलपमेंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फाइनली विल हैव अ लुक एट पेयर प्रोग्रामिंग। कि पेयर प्रोग्रामिंग क्या कहती है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर? कि प्रोग्रामर्स पेयर्स के अंदर बैठते हैं। इट्स वेरी सिंपल, आई डोंट नीड टू आई थिंक एम्फसाइज इट फर्दर, कि दो लोग जब मिलकर बैठ के काम करेंगे तो एरर आने के चांस कम होंगे। और क्योंकि एक और चीज़ जो थी एजाइल का प्रिंसिपल जो था, पीपल नॉट प्रोसेस,
तो इसके अंदर जब आप दो बंदे बैठे होते हैं ना, तो वो किसी एक की ओनरशिप नहीं रहती। जिस तरह मैं नहीं कहूँगा कि ये मेरा कोड है, जबकि हम दो बंदे बैठे हैं ना, तो हम दोनों का कोड है। तो जब दो बंदे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो ऑब्वियसली दैट वुड बी बेटर। और इसका एक और फ़ायदा क्या होता है, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, कि क्योंकि एक बंदा आप लगातार आपकी स्क्रीन को देख रहा है, तो जब जो बंदा लिख रहा होता है ना, ही बिकम्स एरर ब्लाइंड। उसको कई दफ़ा वो एरर नज़र ही नहीं आ रहा होता, लेकिन जब एक बंदा पीछे से आकर देखता है ना, या पीछे से बैठा देख रहा होता है, ही नॉर्मली पिक्स एरर्स वेरी क्विकली। आई विल सजेस्ट कि यू ट्राई दिस एट होम, कि आप कुछ भी कोड करना स्टार्ट करें और अपने किसी दोस्त को अपने साथ बिठा लें। यू विल वेरी सून रियलाइज़ कि यार ये बड़ा फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो फ़ौरन से आपको बता देता है यार ये तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। दिस हैपन्स अ लॉट, आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस। और इट इनकरेजेस रीफैक्टरिंग एज द होल टीम कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस, ठीक है जी। जो पेयर प्रोग्रामिंग है उसके अंदर रीफैक्टरिंग ऑलवेज देयर। और Mayhemen suggests that development productivity with pair programming is similar to that of two people working independently. This is very interesting statement कि पेयर प्रोग्रामिंग के अंदर एक्चुअली एक कंप्यूटर है और दो बंदे हैं, ठीक है। तो इसकी जो डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी है इट्स एक्चुअली सिमिलर, यानी कि अगर आप इन दो को लहदा भी उठा देते ना, तो शायद वो इतना ही काम करते जब दो मिलके कर रहे हैं। लेकिन ये दो मिलके करने के जो फ़ायदे हो रहे हैं वो ज़्यादा हैं। फ़ायदे किस तरह ज़्यादा हैं, कोड तो उतना ही लिखा गया, लेकिन फ़ायदे इस तरह ज़्यादा हैं कि एक तो हमने देखा कि ओनरशिप जो है वो कॉमन हो गई, ठीक है, ज़्यादा बंदों की ओनरशिप आ गई इस कोडिंग के अंदर, और आपका रिव्यू भी हो गया कोड, ठीक है। लेकिन जब इंडिविजुअल कर रहे होते तो रिव्यू ना होता। सो इट इज़ मोर बेनिफिशियल व्हेन वी डू पेयर प्रोग्रामिंग। Now finally we'll have a look at few of the problems with extreme programming. The first one is, or the possible issues that, or the possible things that can go wrong in extreme programming. Number one is customer involvement. ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि if customer is not willing, ठीक है जी, if customer is not available, तो आपका extreme programming would fail, ठीक है। This is as simple as that, ठीक है जी। द सेकेंड इज रिलेटेड टू आर्किटेक्चर डिज़ाइन, कि क्योंकि हम डेवलपमेंट इंक्रीमेंट्स के अंदर कर रहे हैं, और हमने एक एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर हमने कहा है कि जी जो हम डिज़ाइन है उसको हम सिंपल से सिंपल रखते हैं, ठीक है। तो जब डिज़ाइन हम सिंपल से सिंपल रख रहे हैं तो उसके अंदर क्या इश्यूज हो सकते हैं कि हम हो सकता है आर्किटेक्चर, क्योंकि हम पूरे सॉफ्टवेयर को पिक्चर वी आर नॉट इमेजिनिंग और थिंकिंग अबाउट द होल सॉफ्टवेयर, तो हो सकता है हम कोई गलत आर्किटेक्चर डिसीजन ले लें। लेकिन दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू डील विद इन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। और हो सकता है कि ये वाले एक और मसला क्या हो सकता है कि आप इंक्रीमेंट्स पे इंक्रीमेंट्स करते जा रहे हैं और आपको मे बी बहुत लेट जाके 6 महीने प्रोजेक्ट्स में आप चले गए, फिर आपको पता लगा यार मैंने तो आर्किटेक्चर ही गलत डिसाइड कर लिया। तो दिस इज वन ऑफ द आई थिंक बिगेस्ट प्रॉब्लम्स विद एनी ऑफ दीज एजाइल मॉडल्स, क्योंकि हम डिज़ाइन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो दीज थिंग्स कैन हैपन, ठीक है। So you need people in your team who have foresight, who have this kind of experience, who can guide you, who basically know that this kind of an architecture for this problem will be suitable or not, ठीक है जी। और एक चीज़ होती है टेस्ट कंप्लेसेंसी, ठीक है, क्योंकि अब इस हमने पढ़ा बार बार कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट है, और टेस्टिंग को हम बहुत फोकस देते हैं, डेली हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं, ऑटोमेटेड टेस्टिंग होती है। तो अक्सर ये हो जाता है कि आप सिस्टम के ऊपर फिर ज़्यादा तवज्जो ही नहीं देते और आपका सिस्टम इन द एंड पोरली टेस्टेड रह जाता है, ठीक है जी। तो क्योंकि और आपकी ऑटोमेटेड टेस्टिंग है, तो आप बजाय के टेस्ट केसेस का तो मकसद ही होता है कि आप एरर निकालें, लेकिन अगर आप टेस्ट केस ऐसे बनाएं कि वो आपके सॉफ्टवेयर को फेल ना करे, टेस्ट केस बनाने का मकसद ये होना चाहिए कि आपका सॉफ्टवेयर फेल हो जाए, ठीक है, और फेल हो और आपको पता लगे आप उस एरर को निकाल दें। लेकिन अगर आप टेस्ट केसेस ही ऐसे बनाएंगे जो कि आपके सॉफ्टवेयर को फेल ना होने दें, तो दीज आर नॉट गुड टेस्ट केसेस। और तो बेसिकली टेस्ट कंप्लेसेंसी इसके अंदर आ जाती है, विच इज़ वेरी विच कैन बी वेरी प्रॉब्लमेटिक एंड वी शुड ट्राई टू अवॉइड इट। The few key points about extreme programming, we'll just summarize this lecture on extreme programming. Extreme programming includes practices such as systematic testing, continuous improvement and customer involvement, ठीक है जी। Customers are involved in developing requirements. Customer are part of the process. ये हमने बार बार डिस्कस किया कि कस्टमर आपकी एजाइल टीम का हिस्सा होते हैं। फिर द अप्रोच टू टेस्टिंग इन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इज अ पर्टिकुलर स्ट्रेंथ, ठीक है जी, वेयर एग्जीक्यूटेबल टेस्ट आर डेवलप्ड बिफोर द कोड इज रिटन, यानी कि ये हमने देखा है कि दिस इज टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट, ठीक है जी। और की प्रॉब्लम्स विद एक्सपी इंक्लूड्स डिफिकल्टीज ऑफ गेटिंग रिप्रेजेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमने देखी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर वो क्या है कि कस्टमर की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, या हमने आर्किटेक्चरल डिसीजन गलत करनी है। सो वी शुड ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स।
Okay, Ji. Okay. In this slide, we just saw the reasons that why we should not use Scrum, and just to quickly go through them again. First of all, if your existing software process model that you're using in your company, it is producing acceptable results. By acceptable results, we mean here that you are developing the software and giving it to the customer according to his needs at the given time, at the decided time, then this is acceptable results. So you do not need to change. And similarly, if the product that you are going to make, you cannot divide into different increments, then the model that you do not need to use Scrum, because Scrum will not work if it's not incremental development. This is one of the basic agile principles, and Scrum follows that. And if the customer or the product that you are making, it requires heavy designing, I mean you need to produce lots of design documents and documentation before you actually start beginning development, then Scrum is not for you. And finally, there are two things that your team should agree that something is done, or they need to do something. They should be able to divide work among themselves. If they cannot do it, then again you should not use Scrum. Next, we will look at agile principles, just a quick overview, and I will try to we will try to establish that whether Scrum follows these agile principles or not. So quickly going through them again, there were 5 agile principles that we covered in the last lecture. Number 1 was customer involvement. Number 2 was incremental development. Number 3, people not process. Number 4, embrace change. And number 5, maintain simplicity. And by customer involvement, we meant that customer should be, not literally, but he should be part of your team. Customer को आपने ये realize कराना है कि you are very essential to this project, so that he knows that if he is not there, this project is going to fail. Similarly, second agile principle was that in any agile process model, we cannot call a process model agile process model, or we cannot call that this is there is agility in this process model unless and until there is incremental development in it, okay, or incremental delivery of the software in it. And another key thing is that each increment in agile process, it should add some functionality, or it should add some value to the product that you have already given to the customer. So those were the first 2 agile principles. Number 3, we have people not process. By people not process means that we do not pay much attention to the individual activities within a process model. For example, comparing it with waterfall model, the first phase is analysis, the second phase is design. Now in the waterfall model, we cannot move to design phase unless and until an analysis is complete, and our focus is on producing the work products that are basically produced in analysis. For example, we need to produce an SRS document in analysis. Similarly, in design, we need to produce the design documents. But in case of agile models, the emphasis is on people, because it's basically an agile team who decides on the deadlines along with the customer. So the focus is on people, not process. And fourth agile principle is embrace change. So any agile process model, it should be yielding. By yielding, we mean that it should accept changes very easily. And the reason why, and this is linked to second agile principle, which is incremental development. And we have already covered that in XP and in Scrum, the size of those increments, they are very small. In extreme programming, the maximum size of an increment was 15 days, whereas in Scrum, the maximum size of an increment was 30 days. So this quick incremental deployment or development, it means that these process models ensure that if there is a change, they would embrace it, and they would easily accommodate it in comparison to any other non-agile process model. And the fifth agility principle that we covered was maintain simplicity. So by maintain simplicity, we mean here that for example, in case of design, we do not do a lot of designing. Okay, we are interested in getting straight into the development and doing what the customer has asked us to do. Okay, so these are the 5 agile principles. Now we will try to compare and see whether Scrum, because we already discussed when we discussed those principles that if a process model, it does not fulfill any of these agile principles, then we cannot call it an agile process model. So we'll just have a look at Scrum and these agility principles. Okay, so the first principle was customer. So first principle was customer
involvement. Okay, now how is customer involved in Scrum? We saw that the customer is involved. First of all, the customer is there when you are producing that product backlog. So the customer is present when you're producing that product backlog. And how is there? Because he's the one who is telling you which requirements you need, which are the things that the customer want in the next increment. And not only he is there to tell you which requirements you need, but he is also there to prioritize requirements. So second role of the customer is prioritize requirements. Okay, now so basically we've seen there are two roles. Number one is product backlog. Customer helps you to make the product backlog, which means he tells you all the features that are required. Secondly, he also helps you in prioritizing those requirements. So already we see that there is huge customer involvement here. And moving on, customer is also part of the team when you are deciding or you are assigning cost. You are assigning in your sprint, in your planning meetings for Scrum. So customer is there in those planning meetings. Okay, and these planning meetings, what do we do in these planning meetings? We basically decide कि हमने जो एक इंक्रीमेंट देनी है कस्टमर को, हमने कितने अरसे बाद देनी है, ठीक है. सो देयर इज अ कमिटमेंट बिटवीन यू एंड द कस्टमर डायरेक्टली. एंड नंबर 4, कस्टमर इज देयर व्हेन यू हैव टू बेसिकली show the work product that you have produced or show what work you have done to the customer. So that is वो हमारी कौन सी मीटिंग थी जो इसके अंदर हम स्प्रिंट को रिव्यू करते थे. हमारी एक इंक्रीमेंट को हम स्क्रम के अंदर क्या कहते हैं, स्प्रिंट कहते हैं. तो जब हमारी स्प्रिंट एक कंप्लीट हो जाती है, देन वी मीट विद द कस्टमर और कस्टमर को हम वो काम दिखाते हैं जो हमने उस इंक्रीमेंट में किया और उसका अप्रूवल लेते हैं. सो इसको हम कह सकते हैं कि द फोर्थ रोल ऑफ द कस्टमर इज स्प्रिंट review. So we can see by this that there are 4 main roles that the customer is playing in Scrum. So there is heavy customer involvement in Scrum. So we have discussed it already that if the customer is not present, then obviously you can already see that Scrum cannot work. Okay, and the second was incremental development. ओके जी, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट स्क्रम कैसे करता है? पहली बात तो ये है कि जब हमने अपनी ये प्रोडक्ट बैकलॉग बनाई है, ठीक है, विद सिटिंग विद द कस्टमर, तो हम प्रोडक्ट बैकलॉग ही ऐसे बनाते हैं. और जब हम खास तौर पे जब हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें हम करते ही इसलिए क्योंकि हमने इंक्रीमेंट जो अपनी डिलीवरी करनी है वो हमने इंक्रीमेंट्स के अंदर करनी है, ठीक है. सो इट इज़ इनबिल्ट इन स्क्रम कि आपने जो एक स्प्रिंट का साइज है वो आप कस्टमर के साथ मिलके बैठ के डिसाइड करते हैं कि आपने, और स्प्रिंट के साइज जो है वो 1 दिन से लेके और 30 दिन के दरमियान कुछ भी आप रख सकते हैं. सो दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड कस्टमर और डेवलपमेंट इज ऑलवेज इंक्रीमेंटल. सेकेंड जो इंक्रीमेंटल का प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि आपको कोई भी आप चीज कस्टमर को दें या इन एनी इंक्रीमेंट देयर शुड बी सम एडेड वैल्यू टू द प्रोडक्ट, और स्क्रम वो इंश्योर करता है. तो स्क्रम इंक्रीमेंट की दूसरी चीज को भी इंश्योर करता है, विच इज एडेड वैल्यू टू द प्रोडक्ट. ठीक है जी. तो हमने देखा कि कस्टमर इन्वॉल्वमेंट भी है और इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट भी है. तीसरी जो चीज है, तीसरा जो एजाइल प्रिंसिपल है, दैट इज पीपल नॉट प्रोसेस. अच्छा, ये कैसे करता है स्क्रम? सबसे पहली चीज तो ये है कि वी हैव ऑलरेडी सीन कि कस्टमर इज वेरी हेविली इन्वॉल्व्ड. ठीक है, तो फर्स्ट लिंक बिटवीन दिस, वी कैन मेक अ लिंक बिटवीन दिस एंड कस्टमर, यानी कि कस्टमर हमारे पास ऑलरेडी है. सो आई एम्फसाइज ऑन द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कस्टमर हु इज बेसिकली पार्ट ऑफ आवर टीम नाउ. सेकेंडली, पीपल नॉट प्रोसेस हम कैसे इंश्योर करते हैं? हम ऐसे इंश्योर करते हैं कि द डेडलाइंस, ठीक है,
ये जो डेडलाइंस होती हैं स्क्रम के अंदर, दे आर डिसाइडेड बाय टीम, ठीक है, और ईच टास्क, हर जो आप काम है वो आप एक मेंबर को असाइन करते हैं। आपकी टीम के अगर 10 मेंबर्स हैं और आपने एक स्प्रिंट करने जा रहे हैं, आपने स्प्रिंट को 10 टास्क में डिवाइड किया एंड यू असाइन ईच टास्क टू ईच टीम मेंबर। टू 1 पर्सन, ठीक है जी। तो ये हो गई दो चीजें, ठीक है, तीन चीजें होंगी। पहली बात तो ये कि कस्टमर इज देयर, फिर आप डेडलाइन जो है वो टीम के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं, और थर्ड चीज क्या हो गई, ईच टास्क इज असाइंड टू 1 पर्सन, ठीक है। और सिमिलरली जो आपकी डेली जो आपकी स्क्रम की मीटिंग होती है, ठीक है, जिसे हम डेली स्क्रम भी कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि ऑल द टीम दे सिट टुगेदर एंड दे ट्राई टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स। दे बेसिकली टेल कि जी हमने कल ये काम कहा था करने को, हमने ये काम किया है कि नहीं किया, अगर तो कर लिए वेल एंड गुड, आप करते हैं हम अगला काम ये करेंगे अब, और अगर आपने वो काम नहीं किया होता तो होल टीम सिट्स टुगेदर, और जो स्क्रम मास्टर होता है विच कैन बी द प्रोजेक्ट मैनेजर, ही वुड बेसिकली से कि जी अगर अच्छा आपको ये मसला आ रहा है तो मे बी he would ask another team member कि please go and help this guy and solve his problem. So our emphasis is again people, not process, because we are not producing any documentation, we are not producing any detailed design in Scrum. So our focus is on people, not process. Okay जी, number 4 was embrace change. अच्छा जी, embrace change कैसे करता है Scrum? पहली चीज तो ये है कि बिकॉज द डेवलपमेंट इज इंक्रीमेंटल, ठीक है जी, क्योंकि इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट है तो इसलिए स्क्रम जो है वो चेंज को ऑटोमेटिकली एम्ब्रेस करता है। क्योंकि आपकी जब इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट होती है, आपने एक चीज बनाई, यू शोड इट टू द कस्टमर, कस्टमर ने कहा नहीं जी मुझे इसके अंदर थोड़ा सा चेंज चाहिए, ठीक है, तो आप अगली जो इंक्रीमेंट है वो आप कहते हैं जी अच्छा अगली इंक्रीमेंट आपको 1-2 दिन में करके देंगे, डिपेंडिंग ऑन कितनी बड़ी चेंज है, और आप कस्टमर को वो दोबारा चीज दे देते हैं। तो द इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, स्पेशली द शॉर्ट और क्विक और एजाइल इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, इट बेसिकली अलाउज यू टू embrace change. So this is kind of inbuilt in Scrum. So we have seen the 4 principles कि चारों के चारों principles को Scrum follow करता है. And finally the last agile principle was कि it should maintain simplicity. ठीक है, अब आपके Scrum जो मॉडल है it ensures कि there is simplicity. So how does it ensure? क्योंकि हमारे पास जो वर्क प्रोडक्ट्स हैं, वी हैव वेरी फ्यू वर्क प्रोडक्ट्स इन स्क्रम। एक हमारे पास होती है प्रोडक्ट लॉग, एक हमारे पास होता है स्प्रिंट बैकलॉग, एक हमारे पास होता है स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट। वी हैव ओनली 3 थिंग्स दैट वी नीड टू मेंटेन व्हेन वी आर फॉलोइंग स्क्रम प्रोसेस मॉडल, ठीक है जी। और obviously if we compare this with any other process model, let's say waterfall model or spiral model, जैसे स्पाइरल मॉडल के अंदर हर स्पाइरल के अंदर यू हैव टू डू रिस्क असेसमेंट, ठीक है, और हर रिस्क असेसमेंट के बाद मे बी यू विल प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो देयर इज लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड देयर इज लॉट ऑफ एफर्ट बीइंग पुट इनटू समथिंग which is not part of delivering something to the customer, but you are doing this risk assessment to judge कि whether whatever you are doing in this spiral is worth it or not, okay। लेकिन Scrum के अंदर our focus is on getting the increment done and giving it to the customer. So simplicity is kind of inbuilt in Scrum. So we have seen that all the 5 principles Scrum follows, so we can safely say that Scrum is an agile process model. Okay, in the next slide we will try to quickly compare Scrum with extreme programming. So there are few things that we need to compare, and we can do the comparisons either on the basis of those agile principles, and we can do comparison on the basis of some definitions that are used. सबसे पहली बात तो ये कि Scrum के अंदर we call each increment sprint, ठीक है जी, जबकि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर वी कॉल इट इंक्रीमेंट, ठीक है। इसी तरह जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं वी कॉल इट यूजर स्टोरीज। आई जस्ट वांट टू
you to see that there is just difference in terminologies and maybe small differences in practices, लेकिन overall they basically do the same thing. User stories है, and in Scrum we have we maintain product बैकलॉग जिसके अंदर हम रिक्वायरमेंट्स है. अब दोनों के अंदर जो कॉमन चीज़ है वो क्या है कि रिक्वायरमेंट्स को हम दोनों में प्रायोरिटाइज करते हैं और दोनों के अंदर कस्टमर ही बेसिकली हमें बताता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट पहली करनी है एंड विच रिक्वायरमेंट यू हैव टू डू एट अ लेटर स्टेज. अच्छा जी, इसके बाद आपकी जो एक स्प्रिंट की ड्यूरेशन है स्प्रिंट के स्क्रम के अंदर इट इज़ 30 days और इसके अंदर आपकी कितनी है 15 days. ठीक है जी. So there is a difference. In Scrum you can have an increment of 30 days, whereas in extreme programming your increment size is 15 days. Acha ji, one thing that is very distinguished which we can easily differentiate between Scrum and extreme programming is कि Scrum requires your team members to meet every day. ठीक है, इसके अंदर जो आपका डेली Scrum होता है इसके अंदर टीम मेंबर्स दे मीट एवरी डे, लेकिन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर देयर इज नथिंग लाइक इट. सो बेसिकली ऑल्दो इन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर इंक्रीमेंट छोटी इतनी होती है कि ऑब्वियसली देयर वुड बी लॉट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट टीम मेंबर्स, लेकिन देयर इज नो फॉर्मल प्रोसीजर. जैसा स्क्रम के अंदर वी हैव फॉर्मलाइज्ड इट कि देयर वुड बी अ डेली स्क्रम बिटवीन ऑल द टीम मेंबर्स, वेयरएज इन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग देयर इज नथिंग लाइक इट. इसके अलावा जब आप स्क्रम को फॉलो कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास होती है पेयर प्रोग्रामिंग. जब हम खासतौर पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं तो वी हैव पेयर प्रोग्रामिंग. ठीक है, पेयर प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं कि दे आर बेसिकली टू इंडिविजुअल्स सिटिंग ऑन वन कंप्यूटर एंड राइटिंग अ सिंगल पीस ऑफ कोड. ठीक है जी, उसका हमने देखा था उसके फायदे क्या होते हैं कि इनफॉर्मल रिव्यू भी साथ साथ होता रहता है और पीपल कैन, और एफिशिएंसी भी जो आपकी है वो नहीं गिरती, यानी कि बेसिकली यू आर नॉट वेस्टिंग टू रिसोर्सेज. जो इनकी एफिशिएंसी है in the end it is better than two people working on two different computers. And whereas if we look at Scrum, तो Scrum के अंदर there is no pair programming. Okay जी, और finally one thing that is common in both extreme programming and Scrum, that is कि extreme programming के अंदर भी whenever you deliver something to the customer has to approve it. Once the customer approves, so you move on to the second increment, whereas in extreme programming we do the same thing. So you can see that there are small differences in different terminologies that are used in both these process models, but both of them they follow all the agile principles. So we can safely say that these are agile process models and they do almost the similar thing. It's just a matter of choosing and it depends on the project manager कि वो कौन सा process model को prefer करता है. ठीक है, there is one clear difference कि Scrum के अंदर team members are asked to basically meet every day, whereas in extreme programming there is no formality like that. So maybe you can say this is one of the key differences between the two. Okay, finally we will summarize our agile lecture on agile process model. So the most important thing that you need to remember is that there are some agile principles, and any process model which we want to call agile process model, it has to follow those agile principles. So those agile principles were, number 1 was customer involvement, number 2 was incremental development, number 3 people not process, number 4 embrace change, and number 5 maintain simplicity. And in extreme we have covered 2 process models, agile process models, number 1 extreme programming and number 2 Scrum. We saw the differences, we saw the similarities between these 2 process models, and we have also seen that both of these process models, they follow agile principles. And we have also seen कि इनके अंदर प्रॉब्लम क्या हो सकता है. We saw कि extreme programming और Scrum दोनों के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स कॉमन है. For example, if customer is not willing to cooperate, ठीक है, and customer is not available for the feedback, तो आप ये मॉडल्स यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कस्टमर हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले इन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एंड इन स्क्रम. सिमिलरली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि व्हेन यू आर डिजाइनिंग और डिसाइडिंग ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, तो यू मे मेक अ रॉन्ग डिसीजन. और क्योंकि आप इंक्रीमेंटल डिलीवरी कर रहे हैं और आपको शुरू में छोटी छोटी चीजें बना रहे हैं, यू आर नॉट डिजाइनिंग, यू आर बेसिकली आवर फोकस इज नॉट ऑन डिजाइन, तो हो सकता है कि हम आर्किटेक्चर गलत चूज कर लें. सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम दैट यू कैन फेस व्हेन यू आर फॉलोइंग दीज agile process models. Finally, the question mark is that when to choose which model. Ideally, what I believe is that in case of R&D projects,
ठीक है. For example, there is a company and they are doing some research, and on the basis of that they are producing a product. In that case, agile process models are most suitable, because the customer or the person who is going to tell you the requirements, he is basically sitting in your company. So he has stakes not only in the product, in the company as well. So he will definitely be there to help you with it. Similarly, in case of e-lancing projects, I've seen various companies working on getting e-lance projects, and they're small companies, they get those projects, they get them done, and they are very frequently, they talk very frequently to their customer. Their customer is, most of the cases, he is always sitting on Skype, he's telling them, do this, do that. So in those cases as well, you can say we can use this agile principles. Thank you very much, and this is all on agile principles. In the next lecture, we will start looking at analysis phase of that. How do we gather requirements? How do we communicate with the customer? So, Assalamu Alaikum.